Thank you very much. So you can skip the address by ED. Sir? Would you like that we should skip your address and proceed with the program? Or would you like to say a few words? Sir, a few words from ED and IDM would be better on youth, sir. That will encourage the participants. Sir, both of you should speak, sir. Just give a blessings to the course and then we will move. Yeah, exactly, sir. So let us start. Most welcome on behalf of Child-Centric Disaster Risk Reduction Center, National Institute of Disaster Management. I welcome all the dignitaries present here on this platform and all the participants. As all of you know that CCDRR Center NIDM has been involved in various types of training related to children in previous years, few years. And now this is our first program about youth and adolescents along with Policy Perspectives Foundation. That is our flagship program, and this program is going to be launched in online and offline mode both. And we have prepared all the materials, modules, etc. for that. And I hope like our child-centric DRR program was very much appreciated among all the stakeholders. We will be taking strides in youth and adolescent program as well. India has a huge potential about youth and adolescents. Almost 27% population of our country is youth. And if we tap them in the field of DRR and climate changing conditions, the situation will be really somewhere after going a few years, we will see a drastic change, whatever is today, in a positive way, of course. So without taking much time, now I would like to invite, first of all, Professor Santosh Kumar for the opening remarks about this program. And let me introduce Professor Santosh. No need, Raka, don't waste time. So there are participants, sir, so I need to read out. There are a lot of agencies have joined us. Have joined us who are working as in the sector actually. NSS, NYJS, etc. So I should just give a brief introduction. Professor Santosh is a disaster management expert with almost 2.5 decades experience in the field. And he has contributed from the grassroots level to the apex level. He is one of the members who has drafted the DM Act as well. He has contributed in the DM Act. He has experience of working with the World Bank and intergovernmental body of SARC Disaster Management Center as well. So Professor Santosh has a extremely marvelous blend of academic and operational things. And this entire CCDRR center is also his brainchild. And he has developed it in a way that within a very short span of time, Child-Centric DRR Center has achieved marvelously actually. And under the guidance of course, Professor Santosh Kumar, we will be looking forward to achieve new heights in the field of youth and adolescence. Over to you, sir. Thank you very much, Dr. Raka, for very kind words. And let me first of all to welcome the two stalwarts and the leaders of the sector. We say that Sri Kem Singh Ji, the former member of the National Disaster Management Authority, who has been conferred by the Netaji Subhash Chandra Bose Award. Government has recognized his contribution of raising the very important we always say that angel in orange, that is the National Disaster Response Force. And his contribution actually has led this as a kind of everywhere the presence of national presence of the disaster management. And we have seen that how he has been able to nurture that and the struggle which we had during the initial stage. And today this force is the pride for everyone. So I'm grateful to you, sir, for one, that partnering with the PPF and also you being there for the blessings in this particular program. I am equally grateful to Shri Taj Hassan Saab, who is the Executive Director of NIDM and also the Director General of Fire and Civil Defense Services, and is a very kind of a proven kind of officer and very well reputed officer in the country, and his name is taken with a very pride. The kind of contribution he has made
in all his previous postings. And we say that NIDM is fortunate to get his blessings for whatever the times which is going to stay with us. We always say that the blessings of the senior officer always help in nurturing the institution. And as he very rightly said in the informal discussion, he's understanding the institute. So this is very, very important. And he always emphasized that as an operational person from outside, I look at that how NIDM, whether child-centric DRR or whether it's a disaster management programs which we conduct and we have been conducting, how and what kind of an impact it has been able to actually create in the system and also in the lives of the people who are at risk. So this kind of this itself is a good vision statement to move from here. So I'm glad that he has agreed and given his consent and he's there to say a few words. So he is also from Indian Police Service 1987 batch. And so we have two police stalwarts, and I don't have to give this as a kind of read CVs, but his recognition in the field has all been recognized. So once again, I take this opportunity to welcome both of you on behalf of the National Institute of Disaster Management and also on behalf of the Child-Centric Disaster Risk Reduction and PPF Foundation on this particular program on Child-Centric DRR. Our team, Dr. Raka, Dr. Balu, and also Ranjan Kumar, Nazia is there, and the team of PPF, Pooja, has always been there. So with this, I would just mention that about nurturing the future, the people who are going to live in this kind of a country, they wish to also participate in nurturing the whole of their own future. So what we are doing with our own wisdom and experience, but we wanted as a child-centric DRR that how their voices could be heard. What kind of a world they want, as a risk-free world or the risk-prone world. And children have gone through different kind of experiences during the pandemic, out of a school, within the school, within the family, outside the family. And we always say that children are very heterogeneous, not as a homogeneous category, high and middle class, low class, out of in a poverty-ridden areas and so on and so forth. So how the children and youth can combine together, the energy of the country can go in the right direction. So I have my sessions in 3 days. I will be interacting. So I will not say anything much on this occasion, but definitely once again, I would like to welcome all the distinguished participants who have joined in the endeavor of National Institute of Disaster Management with PPF. And I'm sure that the 3 days deliberations of different topics related to child-centric DRR would be very, very beneficial. So once again, Sri Kem Singh ji and Sri Taj Hassan Saab to welcome you at this particular occasion. Over to you, Dr. Akka. Thank you very much, sir. Thank you very much for opening remarks, and rightly told that we are having stalwarts here on this platform who will be guiding us throughout rest of our journey, not only this training, throughout the rest of the way where we are going to implement youth and adolescent training program in the country. And without taking much time, I would now like to invite our executive Sri Taj Hassan. Already Professor Santosh Kumar has given a brief background about him, but let me tell you that he has a wide experience of handling law and order, crime, VIP security, traffic management, communal strife, Naxal issues, industrial security, civil aviation security, coastal security, terrorism in the northeast, sir. And sir, after having so many important profiles in the country, is now in the sector of DRR, disaster risk management. And we hope that NIDM would always see new heights under his patronage, under his guidance. And sir, over to you without taking, I don't want to read the entire thing. So over to you, sir. You say a few words to all our participants, all our dignitaries. Most welcome, sir. Good morning to everyone, and good morning to Sir K.M. Singh, sir. I was earlier had the great experience to work with Shri K.M. Singh when he was the DG CISF. After that, sir went to NDMA and I came back to my cadre.
So I learned a lot from him. And that time we were handling industrial security, civil aviation security. And KM Singh sir, with his wide experience in intelligence bureau, he had guided us in many, many respects. So it's honor to have him here as a keynote speaker, as an inaugural speaker. I will not take much time here because I have been reviewing the performance of various centers in the NIDM, and I saw that child-centric disaster risk reduction center. They have contributed a lot during the COVID time. Most of the training centers in the country were closed because there could not be any face-to-face interaction in the training hall. So in that condition, NIDM had quickly switched over to virtual platform. And during this period, they organized many training programs related to youth and adolescent. And their achievement was quite high, well recognizable. However, now in the changed scenario, we are now trying to get back to more face-to-face training program. And we are finalizing our annual training calendar. And we would also be switching over to more personalized with face-to-face interaction with the help of various training institutes and ATIs and police training centers in the country. Because our professors, they give feedback that the face-to-face interactions are much better than virtual because they also conduct many hands-on exercises. So we are in the process of finalizing our next year's curriculum. Secondly, what we are also planning that there should be NIDM as a national institute. It cannot conduct training for whole of the country. It has to have partnership with state training centers, ATI, police training centers, and other specialized training centers. And moreover, we should also focus more on the TOT. So the trainers can train people, and suppose we train 40 people, they should train 40 into 40 people, say, in a session. So the impact should be more. Instead of addressing directly to the officers who will, of course, be involved in disaster management, but it is better that we focus on more on the TOT and everywhere the TOT, so that this should be handed over to the further trainers. As far as this subject is concerned, this is very important, and this is being going on for last 2-3 years. And there is a necessity to continue with this subject because youth and adolescents, they are addressing their contribution in disaster risk management, disaster risk reduction, as well as they may also be more sensitive victim in DRR situation. So this has got two aspects: helping them as well as empowering them, making capacity building for them, because they have more access to the community, they have more energy, they live among the community, and they can come up with a better idea of disaster management than somebody who is teaching from far away places. So we would continue with this, and we would focus more on involving partners who can identify trainers, and NIDM can train them, and so that our impact, the impact of the training remains more powerful. This is what I wanted to say, sir. I am thankful again to KM Singh sir and other participants and the team of Mr. Santosh Kumar, who has worked on this subject. And we are also looking the quality of training material. So I am going through those things so that people should not say that we are teaching people superficially.
So the manual should be good. Whatever subject we choose, it should have a training manual. It should be updated. So the purpose of training actually is that we should make the community, make the administration who are actual practitioners of disaster risk reduction, they should be empowered in terms of their capacity. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thanks a lot. You rightly identified the crux here, sir, and I can understand that, sir. Let me tell you that when we converted from offline to online mode, we were not able to train us actually into the online mode. Training of trainers were quite difficult into the online mode. And that is where face-to-face trainings are actually required. Sir, most humbly, I would like to request you, along with training of trainers, reaching out to the masses is also very, very important. And this platform, online platform, gives us this opportunity that we can reach out to the masses, the grassroots level. So, Dr. Raka, sir, ask somebody to mute themselves because the voice is coming, some disturbance is coming. sir, I couldn't hear you actually. Ask everyone to mute themselves. Okay, everyone, please mute it so that I can be loud and clear. So, sir, a blend of this thing, like online programs has given us opportunity to reach out the schools, the teachers, the parents, and everyone, so that we are also getting a lot of feedback from them. And based on their feedback, we are developing our modules, our PPTs, our training materials. So that is also helpful. And undoubtedly, online mode is never a option for offline mode, because training of trainers are here not possible. And we have faced it. And after facing that, immediately after talking to Professor Santosh Kumar, taking his consent, we dropped last year training of trainers program into the online mode. But right now opening up, and certainly we are collaborating with a lot of institutions, and we will be focusing mainly on training of trainers. And that is what ED and IDM has focused here. And that is very, very relevant to all of us. And thank you very much, sir, for this once again. We will be looking forward to it, and we will be focusing on the same thing. Once again, thank you very much, sir. And now I would like to invite Singh Sir, and rightly from our ED and IDM and our project director told about Singh Sir. And Singh Sir is actually my professional guru. I have most highest respect for him, and that I can't explain in words never. Let me introduce Singh Sir. Singh Sir is a 1968 batch Maharashtra cadre IPS officer, served in the Intelligence Bureau for nearly 3 decades, 30 years in the Intelligence Bureau, in the High Commission London as Minister, coordination from 1996 to 2000, and as DG CISF, Director General of CISF from 2003 to 2005. And during his tenure in IB, he served in Jammu and Kashmir for 7 years. That was the highest insurgency time, if I remember exactly. And after retirement in 2005, he was appointed as a member of National Disaster Management Authority with the status of Minister of State in the Union government. And that was twice. He served in the capacity in NDMA for over 8 years. The tenure was 5 years. He again reselected, and he served NDMA till 2014. He has been responsible for conceiving, raising the National Disaster Response Force, and all of us know what NDRF is today. NDRF is not to introduce today, and he is exactly the father of NDRF, who raised it from the scratch, the nascent phase, to the present status. And presently, after retirement also, Sir has never taken a leave, 24/7 working, always guiding us. And
he is right now associated with policy, also associated with Policy Perspective Foundation. That is a Delhi-based think tank. And undoubtedly, he is the first individual recipient of most prestigious Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Award in individual capacity. And sir, whatever I have learned from you, and I always need your blessings. Thank you very much, sir. Over to you, sir. Unmute कर लीजिए, sir. Thank you, Raka, for the kind words. And indeed, it's a great pleasure for me to participate in this program jointly with NIDM. We have done this program on the child-centric disaster risk reduction jointly with NIDM in the last couple of years. And I must compliment NIDM CCDRR Center that, in my opinion, this program has been quite successful. And I also appreciate the new initiative of doing this program for youth and adolescents. But before I come to the subject, I would like, first of all, to thank NIDM, thank ED, Professor Santosh Kumar, Kumar Raka, and all members of the NIDM for this continued partnership and joining this program today. As Mr. Taj Hassan mentioned, we have known each other for, I think, over 2 decades, 20 years. We have worked together. And let me tell each one of you in the NIDM that NIDM is very lucky to have Taj Hassan heading this organization. I don't know for how long, but let me tell you that whatever period he will be there, he will be leaving a deep impression on the NIDM, which is a very futuristic vision, because I have seen a committed professional, committed with heart and soul in work. And I rate him as one of the finest officers who has worked with me. So, and briefly that he mentioned, I was very happy because only the short period that he has been there, I think he has been able to touch the pulse of NIDM. And the vision that he has shown, I must appreciate that if that vision fructifies, NIDM will be on the right track. The decentralization, where states must take over the responsibility of the awareness generation and capacity building program, with NIDM overlooking and assisting the ATIs, is the correct thing. Somehow that this arrangement should have been working long back. It has not. But also ATI have their problem of shortage of staff, shortage of fund. So that has to be taken care of. But this joint initiative where ATI will play the lead role will indeed be very good. Also, very rightly, NIDM role is TOT, training of trainers. And then they can, with the states, they can do the capacity building program, awareness generation program. So both these points that ED mentioned, I fully endorse that. As regards this online program, that is the outcome of the COVID-19. There was no way out. But within the constraints, the work didn't stop. And awareness generation program continued by the NIDM in a big way. Now things have changed, and very rightly you are planning to go on physical mode. But the point is that in this
country with huge population, even states, unless you go to the district level and block level, the physical mode would not be able to reach the right quarter. So, while the physical mode is good, we have also learned a new technique of hybrid mode, where the important programs which you are having in the physical mode can be the hybrid mode on the virtual platform also, so that the outcome of this physical meet program can reach to the maximum people. So I will request the ED to also consider the hybrid mode. But that much for what the vision was shown by the ED. Coming to the subject that you have chosen, I must compliment that youth and adolescence that you have chosen is a very right subject, right target. Before I touch this subject, this issue, I take a different approach. And the approach would be SWOT analysis, SWOT. I think all of you know what SWOT analysis is. SWOT analysis of India's potential preparedness to deal with the disaster management. For those of you among the participants who don't know what is SWOT initiative, SWOT is an internationally recognized method of identifying and analyzing internal strength and weakness of any organization, and at the same time also the external opportunities and threats. हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रेंथ है, क्या कमजोरी है, और बाहर से हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है, इन सब को एनालाइज करके और तब द फ्यूचर स्ट्रेटजी बनता है. That is what SWOT analysis is, and internationally it is accepted norm. So I would like to do the SWOT analysis of the India's preparedness to deal with disaster management. और अगर SWOT एनालिसिस हम करते हैं तो इसमें वी फाइंड दैट हमारे स्ट्रेंथ क्या है. हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दैट आई एम टॉकिंग इन हिंदी एंड मिक्स बिकॉज आई वाज टोल्ड दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम बिहार, यूपी एंड राजस्थान. ओके सर, दैट इज परफेक्टली ओके सर. हिंदी इंग्लिश का मिक्स बहुत अच्छा रहेगा एक्चुअली. या तो SWOT एनालिसिस से पहले हम इंडिया का जो डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस है, डिसास्टर मैनेजमेंट का, उसका स्ट्रेंथ हमारा क्या है. हमारा स्ट्रेंथ ये है कि पिछले 2 डिकेड में, आफ्टर सुनामी एंड गुजरात अर्थक्वेक एंड ओडिशा सुपर साइक्लोन, पिछले 2 डिकेड 20 साल के आसपास हमारा जो लोगों में इंक्रीजिंग अवेयरनेस हो गया है, आम जनता में डिसास्टर मैनेजमेंट, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में इंक्रीजिंग अवेयरनेस हो गया है. प्रिपेयर्डनेस की तैयारी हो रही है. सबसे बड़ा चीज हुआ है डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट का बनना. ये बड़ा मॉन्यूमेंटल इनिशिएटिव था. और डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने जो 3 टियर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दे दिया है, नेशनल लेवल पर NDMA, स्टेट लेवल पर SDMA, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DDMA, इससे काफी फर्क पड़ा है. और सबसे बड़ा फर्क जो पड़ा है, जो राका ने कहा कि NDRF आ गया है, तो रेस्पॉन्स में शायद इंडिया किसी भी देश से कम नहीं है. तो ये हमारा स्ट्रेंथ है. हमारी वीकनेस क्या है? इंडिया का वीकनेस है कि इंडिया का हाई वल्नरेबिलिटी. इंडिया कोई भी डिसास्टर आप सोच लीजिए, चाहे नेचुरल चाहे मैन मेड, इंडिया में सब डिसास्टर होता है. और कई बार कई जगहों में मल्टीपल डिसास्टर एक साथ होता है. ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. उसके साथ हमारा प्रॉब्लम पॉपुलेशन इतना बड़ा है, तो उसके साथ डिसास्टर को मैनेज करना ये दूसरा प्रॉब्लम है. और तीसरा एक और है जो वीकनेस हमारा, कि डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो बहुत बड़ा विजनरी एक्ट हुआ,
लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बड़ी ग्रास रूट लेवल पर। क्योंकि हम डिजास्टर में कहते हैं कि कम्युनिटी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो कम्युनिटी अगर तैयार है, प्रिपेयर्ड है, अवेयर है, तो डिजास्टर राइट इन द बिगिनिंग उसको हम संभाल पाएंगे। तो कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी अवेयरनेस में अभी भी हमारी काफ़ी वीकनेस है। जब तक हम पंचायत लेवल से उसको हैंडल नहीं करेंगे, पंचायत लेवल को अवेयर नहीं करेंगे, पंचायत में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाएगा, पंचायत को जब तक बजट एलोकेशन नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, हमारी ये कमजोरी रहेगी। तो ये हमारी, मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस कहा। हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी है हमारा डेमोग्राफी। इंडिया का जो वास्ट पॉपुलेशन है, आपका जो आपने जो ब्रोशर दिया है NIDM ने, उसमें अगर उसको देखें तो 6 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम इन्होंने दिया है, NSS, NYKS, भारत स्काउट, NCC, सिविल डिफेंस एंड रेड क्रॉस, और इन सब का इन्होंने टोटल दिया है। तो टोटल इनका स्ट्रेंथ है 1.25 करोड़। इसमें कुछ लोग यूथ नहीं है, मोस्टली यूथ, बट 1.25 crore is a huge number. It means 1% population of the country. तो अगर इस 1% पॉपुलेशन को कि प्रिपेयर्डनेस, इनका अवेयरनेस, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉपर्ली हो जाए, we may become the best prepared country in the world. तो इस 1% पॉपुलेशन को टैग करना बहुत जरूरी है। तो हमारी अपॉर्चुनिटी ये है, इंडिया का जो अभी पॉपुलेशन डेमोग्राफी है, तो 50% पॉपुलेशन 25% से 25 ईयर से 30 ईयर्स के नीचे का, यूथ एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन 40 to 50% पॉपुलेशन है। तो अभी जो आप टच कर रहे हैं, ये ह्यूज 40% पॉपुलेशन, ये ह्यूज पॉपुलेशन, इसको हम तैयार कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अब ये जो हमारा यूथ है, आज का यूथ, अगर आज हम पीछे देखते हैं, आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले जब हम भी यूथ थे, तो हमारा क्या एक्सपोजर था, कंट्री क्या था और आज क्या है। हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक एज में, और इस इलेक्ट्रॉनिक एज में आप लोग जो यंग है वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जो मिडिल एज एल्डरली है वो अप्रिशिएट करेंगे कि आज का छोटा बच्चा भी मोबाइल, लैपटॉप, 2-3-4 साल का बच्चा इतना बढ़िया हैंडल कर लेता है जो शायद हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये यूथ इतना, आज का यूथ जो है इंटायरली डिफरेंट है। आज का यूथ एस्पिरेशनल है, विजनरी है, उसमें इनोवेटिव है, डायनेमिक है, क्रिएटिव है, इतनी क्षमता है उस यूथ में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हर यूथ में है, सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटी, अब कोई बच्चा गांव में पैदा होता है, गरीब घर में पैदा होता है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो पोटेंशियल इसमें भी है, लेकिन वो पूरा उसको हार्नेस नहीं कर पाते हैं, वो चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। और कुछ शहर में जो है, जो अमीर फैमिली के बच्चे हैं, वो उनका चैनलाइज हो जाता है, हार्नेस हो जाता है, बड़ा अच्छा करते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है यूथ का, जो कि इसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को आप देखें कि कैसे इसको हम प्रॉपर्ली इसको हार्नेस करके चैनलाइज कर सकते हैं। और हमारे पास थ्रेट क्या है? लास्ट वीक हमने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एनालाइज कर दिया। थ्रेट ये हमारा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर। अगर आप पिछले 100 साल का देखें तो धीरे धीरे डिजास्टर, नए डिजास्टर बढ़ते चल रहे हैं। पहले अर्बन फ्लडिंग नहीं होता था, अब हर जगह अर्बन फ्लडिंग होता है। लैंडस्लाइड बढ़ गया है, फ्लड्स बढ़ गया है, क्योंकि रिवर्स में रिवर प्लेन वगैरह ऊपर उठ गया है। तो हमारा जो थ्रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, बट सबसे बड़ा उसमें थ्रेट जो बढ़ गया है वो क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को अगर इसमें ऐड कर दें तो थ्रेट बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक चारों जो एनालाइज कर दिया, हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये स्ट्रेंथ काफ़ी है, वीकनेस भी है, अपॉर्चुनिटी है जो आपने ठीक नब्ज टटोला है
कि यूथ एंड एडोलेसेंस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, उसको देखते हुए जो हमारा थ्रेट है उसको हम कैसे आगे बढ़े। तो इसमें जो फैमिली का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का और खास करके स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे जो हैं, यूथ जो हैं, एडोलेसेंट जो हैं, बड़े इम्प्रेशनेबल एज में हैं, उनमें क्षमता बहुत है। कोई डिसास्टर हुआ तो कंपेयर टू अदर ह्यूमन बीइंग बच्चों में एनर्जी है, इनिशिएटिव है, थकेंगे नहीं, साइकोलॉजिकली भी, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसको हम कैसे हार्नेस करें और इस इम्प्रेशनेबल एज में उनको कैसे सिखाएं कि डिसास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, क्या करना है, उनका क्या रोल हो सकता है। सिर्फ डिसास्टर के पीरियड में ही नहीं, बल्कि डिसास्टर के पीरियड का भी जो इंफॉर्मेशन कहेंगे, क्या होता है इम्प्रेशनेबल माइंड में, कि आप सिखाते हैं अर्थक्वेक में क्या करना चाहिए, फ्लड का क्या डूज एंड डोंट, आम जनता भूल जाती है। लेकिन अगर स्कूल का करिकुलम का पार्ट अगर उनको बताते हैं तो उनके दिमाग में रह जाता है। और जाके घर में अगर एक बच्चा अपने फादर को कहेगा कि दिल्ली अर्थक्वेक जोन में है और आपने घर में 4 अलमीरा रखा हुआ है लोहे का और उसके ऊपर अटैची रखा हुआ है, अर्थक्वेक में गिर के हम लोग मर सकते हैं, इसको हटाइए आप, तो पेरेंट्स सुनेंगे। अगर मास्टर ऑफ द हाउस कहेगा तो उसकी वाइफ भी नहीं सुनेगी शायद, लेकिन बच्चे कहेंगे तो पेरेंट्स सुनेंगे, तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। और ये जो आप इम्प्रेशनेबल एज में जो यूथ और एडोलेसेंस को जो भी सिखाएंगे वो जिंदगी भर रहेगा। इज द बिगेस्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम कहें तो इसको। तो इसीलिए आप लोगों ने, कई लोगों ने सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिसास्टर रिस्क रिडक्शन का भी नाम सुना होगा। तो सेंडाई फ्रेमवर्क में भी इन्होंने उसका वन ऑफ द गाइडिंग फोर्स इज टू इंक्लूड यूथ इन द डिसास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क। उन्होंने भी कहा है तो हमारा क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर हम आगे, जैसा यूडी साहब ने बताया कि उनका क्या विजन है NIDM का, अगले कुछ सालों में क्या करना चाहिए, तो उसमें ये जो हमने अपॉर्चुनिटी बताया यूथ का, उसको कैसे चैनलाइज करें कि इनकी जो इनॉर्मस पोटेंशियल है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस जनरेशन करा सकें, पर्टिकुलरली इन द स्कूल। और इसीलिए NDMA का एक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम भी है, वो काफी हद तक चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना है स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में। लेकिन मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि राका जब यहाँ आए उसके पहले ही वॉज इन द नोडा डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उस समय राका ने एक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम अर्थक्वेक रिलेटेड एंड इवैक्यूएशन ड्रिल एंड ऑल, इसका काफी हर स्कूल में प्रोग्राम किया। और उसमें भी इनके साथ हम लोग PPF, हम लोग द नॉलेज पार्टनर, तो मैं फुली इन्वॉल्व था, मुझे मालूम है क्या हुआ। और ओवर एरियर पीरियड ऑफ 1 ईयर टाका कितने स्कूल थे? 100। हाउ मेनी स्कूल्स? 110 sir, 110 in final reads. नोडा नोडा में 110 स्कूल्स का इन्होंने करवाया। और एक दिन अल्टीमेटली उस 110 स्कूल का एक पर्टिकुलर टाइम में एक साथ अर्थक्वेक सायरन के साथ अर्थक्वेक अलर्टनेस इवैक्यूएशन प्रोग्राम का पूरा ड्रिल करवाया। और इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ कि दैट फाइंड्स मेंशन्ड इन द गिनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। तो इस तरह का इनिशिएटिव, बट स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। बच्चे वहां सीख गए कि कोई अगर अर्थक्वेक हो, आग लगे, तो क्लास से कैसे निकलना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर स्कूल में जिस क्लास में है वो 2 दरवाजा है और दोनों दरवाजा में बच्चे एक एक करके लाइन से निकले और सीढ़ी पर भी 2-2 के 2 लाइन में उतरे, सब निकल जाएंगे विद इन ए फ्यू मिनट्स। लेकिन अगर सब एक साथ भागे तो दरवाजे पर ही सब क्लॉगिंग हो जाएगा और 10% बच्चे भी नहीं निकल पाएंगे। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है उपहार सिनेमा ट्रेजेडी। अगर इस तरह का जो भी लोग सिनेमा हॉल से भागने लगा, ऐसा तो कोई एक्सप्लोजन तो नहीं था कि
सडनली पूरे सब लोग जल गए। ये तो आग लगा था, पैनिक हो गया, सबको इकट्ठा होकर सबको दरवाजे पर एग्जिट गेट पर चले गए और नहीं निकल पाए, इतने लोग मर गए। अगर ये ट्रेनिंग उनको हुई होती और समझे होते तो शायद कोई भी नहीं पड़ता, वहां में सब कोई बच जाते। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट है एंड इट शुड बी गिवन वेरी हाई प्रायोरिटी। लेकिन क्या होता है, एक माइंडसेट है हमारे कंट्री में, जो माइंडसेट है इंडिया में, जो हमारा एक वीकनेस वो भी है कि राम भरोसे होगा तो सरकार देखेगी, भगवान देखेगा, हम बच जाएंगे। लेकिन अगर राम भरोसे के बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा हो, उसको नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, तो इतना डैमेज नहीं होगा। और ये राम भरोसे मतलब पढ़े लिखे लोगों में भी मैं क्लासिक एग्जाम्पल दूंगा कि क्यों, अगर मान लीजिए यूथ एंड, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूथ एंड एडोलेसेंस अगर अवेयर है कि क्या होना चाहिए तो कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन हम लोगों में कितना एक ब्रेवेडो है कि कुछ नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पिछले साल अगर आप लोगों को याद होगा कि वेस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन टॉटे हुआ था, वेस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन टॉटे 19 मई को हुआ। 17 मई को IMD ने पूरा फोरकास्ट दे दिया। मैं तो गोवा में था उस समय, गोवा में पहली बार मैं अब तक मैं ही कहता था कि अब तक मैं डिजास्टर NDRF टीम भेजता था और दिल्ली में बैठे बैठे देखता था कि कैसे साइक्लोन में क्या ट्रेजेडी होती है। पहली बार आई वाज ऑन द रिसीविंग एंड, मैं गोवा में था 100 किलोमीटर पर आवर में एंड माय विला इज फेसिंग द सी। मैंने देखा कि क्या भयंकर रूप होता है साइक्लोन का। बट एनीवे दैट इज इंसिडेंटल। बट पूरे वेस्टर्न को, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को वार्निंग था। और हम जानते हैं कि वार्निंग के बाद इवन जो फिशरमैन होते हैं वो भी अपना नाव लेके वापस आ जाते हैं। 2 दिन का एडवांस नोटिस था। जो ONGC इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बार्ज ऑयल एक्सप्लोरेशन में हाई सी पर जाते रहते हैं, उनको 2 दिन पहले सबको मालूम हो गया। कई सारे बार्ज हाई सी में थे, सब वापस आ गए। लेकिन एक P305 बार्ज था, उसके जो कैप्टन थे ही वेंट इनटू ब्रेवेडो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने देख लिया है कि साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा, मैं सेफ इसको एंकर कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। उन सबके कहने के बावजूद मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम सी में बचा लेंगे इसको, और नहीं गए। और 2 दिन को 19 तारीख को जब आया साइक्लोन तो पहले तो उनका एंकर पूरा टूट के खत्म हो गया और शिप जो है पूरे डगमगा के पूरा डूब गया और about 80-85 people died. That is because the foolishness of one captain, and he was in such a position. He could, तो ये जो अवेयरनेस है इस तरह का, हम थोड़ा लंबा टाइम ले रहे हैं, लेकिन देखिए आज आप देखते होंगे कि आग लग के सिनेमा हॉल में, हॉस्पिटल्स में, मॉल में इतने आग लग जाते हैं। और इतने क्यों होते हैं? अब जाके देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में फायर एक्सटिंग्विशर वर्क नहीं करता है। अगर है फायर एक्सटिंग्विशर तो वहां किसी को मालूम नहीं कि कैसे देखें, या एक्सपायरी डेट हो गया है। मैं एक लास्ट एग्जांपल देके खत्म करूंगा क्योंकि मैं आई थिंक लंबा टाइम ले लिया। लेकिन अगर आप लोगों में कुछ लोगों को याद होगा तो कलकत्ता में आज से 4-5 साल पहले अमरी हॉस्पिटल में आग लगा था। और अमरी इज ए प्राइवेट वेरी बिग हॉस्पिटल, और अबाउट 80-90 पीपल जल के मर गए उसमें। 3 बजे रात में आग लगा। और क्यों मर गए? क्योंकि 3 बजे रात में हुआ और कोई फायर रेस्क्यू सिस्टम, कुछ सिस्टम वर्क नहीं किया। बाद में इंक्वायरी, और ICU वगैरह में जितने लोग थे सब जल के मर गए। हॉस्पिटल के सबके स्टाफ छोड़ के भाग गए। नाउ इंक्वायरी कमेटी हुई। इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट जो आया उसमें ये निकला कि फायर जो शुरू हुआ था बेसमेंट से, शॉर्ट सर्किट से। अगर बेसमेंट शॉर्ट सर्किट से होता है, वो अगर प्रॉपर है तो अलार्म देगा, कोई गार्ड या जो भी डील करता है उसे बुझा देगा, बात खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ कि बेसमेंट में ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल भी रखा हुआ था।
3 महीना पहले पुलिस ने और फायर ऑडिट ने कहा था कि इनको आप इमीडिएटली हटा दीजिए। अमरी हॉस्पिटल ने अंडरटेकिंग दिया एक हफ्ते के अंदर इसको हटा देंगे, और नहीं हटाया 3 महीने के बाद भी। उसके कारण इतने लोग जन के मर गए। अब बताइए, ये तो मतलब क्या कहता है कि मतलब इग्नोरेंस का लिमिट है। बट उसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे मालूम हुआ, जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट में नहीं आया, वो ये हुआ कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर हॉस्पिटल में वर्क नहीं कर रहा था। 1 महीना पहले फायर ऑडिट हुआ था, उसके बाद भी फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं वर्क कर रहा था? क्योंकि आई वाज टोल्ड, आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट, बस मुझे कलकत्ता किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी ने बताया कि 1 महीना पहले, एंड ताज इट विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू बिकॉज यू आर आल्सो डीजी फायर सर्विसेज, कि 1 महीना पहले सेफ्टी ऑडिट फायर का हुआ था। अमरी हॉस्पिटल में जितने फायर एक्सटिंग्विशर हुए थे उसको 15 दिन के लिए किराए पर लेके लगा दिया, और फायर सेफ्टी ऑडिट में सब क्लियर हो गया, सब वापस कर दिया उसके बाद से। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो और हर हफ्ते कहीं ना कहीं फायर इंसिडेंट होता है। तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, हम कैसे एक अगले फ्यूचर में चले जहाँ की हमारी जनता जो है उसको अवेयरनेस हो और इतना राम भरोसे नहीं चले। तो मैं कंक्लूड यही कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं यूथ एंड एडोलेसेंट का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। अब इसको किस तरह आप करें कि इसका एक वाइडर एक्सेप्टेंस हो, वाइडर रेमिफिकेशन हो, और आई विश यू ऑल द सक्सेस। प्रॉब्ली ये पहला प्रोग्राम है, इट कैन बी अ ट्रायल प्रोग्राम, बट आई एम श्योर this can be carried forward and it will have very useful outcome. And I must thank all of you in the NIDM once again for associating PPF in this program. And PPF would like to assure you कि जहाँ भी last point एक क्योंकि just occurred to me which is not related, but ED since अपना vision note बना रहे हैं, मेरा एक अपना पर्सनल एजेंडा है, and whether NIDM can take note of that or not. संतोष कुमार is aware, राका is aware कि जब मैं NDMA से मेरा टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद से PPF में एक नए एंगल पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं जब NDRF में था, तो जब NDRF के लोग गांव में जाते थे रेस्क्यू के लिए, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विलेजर विल से कि नहीं, मैं नाव में नहीं जाऊंगा, मेरे पशु को भी, मवेशी को भी अगर निकालिए तो मैं जाऊंगा, क्योंकि वो तो मर जाएगा तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। तो इंडिया की सोसाइटी 70-75% पॉपुलेशन गांव में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका आजीविका पशुओं पर निर्भर है। लेकिन आई विल रिक्वेस्ट द ईडी टू गो थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें एनिमल का कहीं बॉर्डर नहीं है, और हर डिपार्टमेंट को रोल दिया हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री का कोई रोल नहीं है, वेटनरी का कोई रोल नहीं है, उसको पूरा नजरअंदाज कर दिया गया है। वही हालत अभी भी चल रहा है। तो सवाल है कि इस पर हमने कई बड़े बड़े सेमिनार किया, MHA को रिकमेंडेशन भी भेजा कि आप इसको, आपके डिजास्टर में लिखा हुआ है कि इट इज ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग एंड प्रॉपर्टी, एनिमल को ऐड कीजिए। तो होम मिनिस्ट्री का रेस्पॉन्स है, फर्स्ट प्लान भी बना सर, फर्स्ट एनिमल का प्लान भी बना, फर्स्ट प्लान भी बना, डिजास्टर प्लान। एक्चुअली हमने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पीछे लग के, हम लोग PPF लग के, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर द नेशनल प्लान ऑन मैनेजमेंट ऑफ एनिमल इन इमरजेंसी। बिहार वाज रिसेप्टिव। मैंने सबसे पहले NDRF के, पूरे NDRF के हर बटालियन में उनको मैनेजमेंट ऑफ एनिमल इन इमरजेंसी का ट्रेनिंग दे दिया हुआ है, ऑन फिजिकल ट्रेनिंग। और पिछले 3-4 साल में 14,000 एनिमल उन्होंने रेस्क्यू किया है। बिहार में हमने, क्योंकि BSDMA वाज वेरी संतोष वेरी सपोर्टिव, तो पहला प्रोग्राम किया। उसके बाद से बिहार में जो एक मैनुअल बना है फॉर वेटनरी डॉक्टर्स, जो वेटनरी डॉक्टर्स को आइडिया नहीं था कि उनका कुछ रोल है। वेटनरी डॉक्टर्स का जो रोल है डिजास्टर में इंटायरली डिफरेंट है, जो उनको कोर्स में नहीं, वेटनरी कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता है। तो 5 दिन का हमने एक कैप्सूल प्रोग्राम बनाया, उसका 100 पेज का बुकलेट है, क्या क्या ट्रेनिंग होगा। और थैंक्स टू बिहार BSDMA, बिहार में 1200 वेटनरी डॉक्टर हैं इन द बैचेज ऑफ 35 कोर्सेज करके। ऑल द वेटनरी डॉक्टर्स इन बिहार हैव बीन ट्रेन्ड। बिहार इज द ओनली स्टेट। लेकिन इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, बट इस पर
MHA को जब हमने कहा कि इसको आप आगे बढ़ाइए और इसको पहले एनिमल को डालिए, एनिमल हस्बेंड्री को डालिए, MHA का कहना है कि एनिमल इज इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी। अब एनिमल तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का 2018 में एक जजमेंट है, हमारे पास पूरा है। कोर्ट का कहना है कि एनिमल इज ए लिविंग एंटिटी, इट इज नॉट प्रॉपर्टी एट ऑल। फिर भी तो अब इस देखिए, हम एक एग्रेरियन सोसाइटी है, गांव का पॉपुलेशन ज्यादा है, उनका लाइवलीहुड पर डिपेंड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो क्या एनिमल को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा NIDM के, एंड आई एम प्रिपेयर टू हैव सेशंस विद यू, डिस्कशन विद यू, गिव माय एनी नंबर ऑफ मटेरियल, कि इसको भी आप ऐड कीजिए एक्ट में एंड ग्राउंड लेवल पर। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. I'm sorry I have taken much longer time than I should have. Sir, thank you very much. Actually, you have got the pulse of the gaps where actually the disaster management system is facing today. And rightly, sir, your last point, I'll be coming at the end, but throughout the SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunity, and threats, you tap the potential what the youth and adolescents as 25-27% population of the country is having today. And if we rightly empowered youth in the right direction, then all of you told, and I also think that somewhere there will be a drastic change in the entire disaster risk reduction mechanism in the country. And sir, what you told, Singh Sir, that these organizations, which are formal organizations, either it's NSS or NYKS or Bharat Scout and Guides, NCC, Civil Defense Volunteers, Red Cross, this is just 1% population of the country, but the youth population is 25-27%. So on the one hand, we need to tap these already formalized associations, organizations where there is chunk of youth volunteers already working. And at the other hand, those youth volunteers who are not associated with any formal agencies, they are also need to be tapped. And rightly, sir, after that, if youths are there, since the community, and rightly you told that they are having different understanding, different capacities, different way of dealing the things, and sometimes they are far ahead from us, the generation which we have already aged. And if we tap exactly the potential of youth, things are going to be different. And rightly, again, even if we are talking about animal husbandry things, and that is very right, that property is something that is not alive, but the animal husbandry, the livestock on which the rural population is alive, they are also alive. And rightly, I was just a single example I'll be giving without taking much time. One student was getting out of Kyiv in the recent ongoing conflict, and he denied leaving the war-prone country if his dog is not rescued along with him. So that is the attachment with the livestock. It's not only about the dogs or the birds or the cows or the fellows or whatever it is. Livestock are very much part of the rural population or entire humanity actually. And youth also has a lot of potential to deal there. So we can always see that, we can also see that, sir. And once again, Singh Sir, I would like to thank you for a mesmerizing speech of yours, where you find out exact gaps and how this training program, although this is the first training program. I want to, yeah. Excuse me, interruption. I think ED has left, isn't it? But in case ED has left, I should have mentioned, I forgot to mention, but Santosh, you can do that. I forgot to mention that हमने सबसे बड़ा national program किया था with the veterinarians from all over the country. Huge participation was that was done in partnership with the NIDM and NIDM only. और उसका काफी बड़ा booklet हमारे पास है, उसके recommendations हैं, वहाँ plan release हुआ था. NIDM at that stage was a part of this. Some of the NIDM also did not take it forward.
बट दैट अपार्ट आप उनको बता दीजिएगा और कहिएगा तो मैं हमारा जो उसका रिकमेंडेशन पूरा कॉपी है उस प्रोग्राम का वो भिजवा दूंगा NIDM को मैं. Certainly, sir. Thank you. So I hope, sir, Professor Santosh, sir, will be taking care of that. And rightly, youth and adolescents has a lot of potential to contribute into the livestock saving things as well at the ground level. Rightly, you told, sir, that this is our flagship and first program looking after tapping the potential of youth and adolescent in DRR and climate change adoptions. And if that is done, massive impacts will be there in the coming future. And sir, also I would like to say that once again, thank you very much for giving us all the ideas, all the very important points where we have to develop our flagship program in the future. We also keep learning and accordingly we keep developing our modules, PPTs and etc. and etc. And always we look forward for an interactive program with the participants so that we can also get the opportunity. And now Professor Santosh is here. Sir, if you would like to say a few words before closing the inaugural session, sir, Professor Santosh Kumar. No, I don't have to say, just I'm extending my heartfelt thanks and grateful, my gratitude to Sri K.M. Singh ji and the Executive Director NIDM for being with us in this very, very important initiative. And I hope that suggestions which have been given, we will take it forward. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, we are lucky, we are graceful that the first program, flagship program, is being conducted under your guidance and patronage. I'll just request, sir, if you have time, just go through the entire program so that we can get the exact ideas where we have to develop more. And once again, thank you very much to all dignitaries. K.M. Singh sir, ED and IDM, who has already left, but he was there throughout the time, almost 1 hour. Thank you very much, sir. And Professor Santosh Kumar, who is always our guiding force, our guru here, whatever CCDRA center is doing. And along with that, now I would like to invite Manika from Policy Perspective Foundation to say a vote of thanks to all of the dignitaries. And after that, we will proceed towards our technical sessions. Thank you, Dr. Raka. So without taking any more time, I will just quickly share the schedule with the participants. So the schedule for the 3-day program, we have 2 technical sessions scheduled for each day, which sums up to 6 key sessions in total. Every session will be succeeded by a question answer session. So participants can share their questions in the question answer box only, which will be taken up after the session. So hope that the participants make the most out of this opportunity. And I would also request everyone to kindly register yourself for the course if you haven't done so far. We have shared the registration link in the chat box. We'll do so again. If in case you still feel any difficulty, kindly share the same in the chat box and we'll get back to you. And I would like to remind that 80% attendance is required for all the 3 days to obtain a successful participation certificate. So I'll quickly move on to the technical sessions for the day. So first presentation for the day is by Dr. Kumar Raka on the subject do's and don'ts of COVID-19. So without taking any more time, I would like to hand over the platform to you, sir. Over to you. Thank you. Thank you very much, Manika. We have spent a lot of time and this is flagship program. So I understand that the inaugural session will go a little bit long. With the kind permission of K.M. Singh sir, Professor Santosh Kumar, should we proceed towards the technical session, sir? Yeah, thank you very much, sir. All the participants, we are sorry that inaugural session taken a bit long time. Now let's start with our technical session. And as all of you are aware that COVID-19 is a little bit has taken a rest type of thing, but it's not over. And as mandated by the ministry, we have to conduct do's and do nots and COVID appropriate behavior before the start of any training. So let's go ahead. Things will be interesting to know, understand. And let me share my screen so that I can share a presentation with you. Manika, बताइएगा थोड़ा सा स्क्रीन आ जाए सामने पे. Sir, it's visible. Okay, ना?
मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि देखिए कोविड-19 जो था वो अभी भी यहाँ पे है, अभी भी केसेस आ रहे हैं और कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं एंड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज गिवन अस वार्निंग दैट फोर्थ वेव विल बी कमिंग बाय May or June. So a little bit background before understanding. 3 wave तो हम देख चुके, but 4th wave is coming. Then what we have to do, what we don't have to do, and how we can save ourselves and our families. मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है एंड क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं लास्ट में लूंगा. जिसको भी जो भी क्वेश्चन आंसर है आई विल बी हियर फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना इसलिए जरूरी है कि इस टाइमलाइन को समझना जरूरी है एग्जैक्टली. ओके, इसलिए 2019 में 1 दिसंबर को वुहान प्रोविंस के चाइना के वुहान प्रोविंस में कोविड का पहला केस आता है. ओके, एंड विद इन जस्ट 2 months बाय द 30th जनवरी 2020 इंडिया के केरला स्टेट में कोविड का केस मिलता है. See the timeline. वुहान प्रोविंस कहाँ है? चाइना में. और केरला कहाँ है? इंडिया में. thousands of kilometers apart. But since the world is a global village, you know, a lot of communication, a lot of transportation, केस आ गया क्योंकि वायरस है ये. और वायरस जो है इसका स्प्रेड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग. And after that, जनवरी से आप याद कीजिए मार्च 2020, all of a sudden, entire country went into the lockdown. Again, just 2 month gap. पहला केस केरला में 30 जनवरी को और 2 महीने के अंदर पूरा कंट्री फिर से लॉकडाउन. Reason why? We were not prepared to face this virus. Okay, why we were not prepared? Because we were not knowing how we have to save ourselves, what is the appropriate behavior, how we have to deal with it, right? So that is why the best thing was to close down, lockdown. And uske bawajood the COVID didn't stop. Why? Because we were not ready, we were not learned how we have to save ourselves. और उसके बाद जितने भी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, हर जगह, हर कंट्री में, हर राज्य में स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड. एंड डाटा आप देख सकते हैं कि अभी भी जो कोविड का केस है, भले हर दिन आज न्यूज़पेपर का मेन ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बन रहा है, बट इट्स स्टिल देयर. अभी भी है. अभी भी होने का मतलब क्या है? ये कभी भी फिर से, जैसे पहला वेव होने के बाद थोड़ा गैप लिया, दूसरा वेव होने के बाद फिर थोड़ा गैप लिया, तीसरा वेव हुआ, फिर अभी गैप ले रहा है. हो सकता है 4th वेव हो सकता है 5th वेव हो. एंड until unless we humans start following perfectly COVID appropriate behavior, we can't defeat it. Vaccination is one another thing. वो भी अपने लेवल पे हाईएस्ट एफिशिएंसी में चल रहा है, बट along with vaccination we have to follow appropriate behavior. And क्यों? Let me explain that to you. I'll be just a little bit fast. I told you. Last 24 hours का रिपोर्ट आप देख सकते हैं. द गुड थिंग इज ओनली केसेस तो बहुत कम हो गए हैं, 5000 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन 5000 केस भी कोई कम नहीं होता है. एक बीमारी की वजह से, एक सिंपल बीमारी की वजह से पूरे कंट्री में 4500-5000 केसेस है. डेथ्स ऑलमोस्ट 150-145 डेथ्स भी हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में. बट द गुड थिंग, केसेस हैज गॉन डाउन. एंड द बेस्ट थिंग, द वेरी गुड थिंग इज most of the population is vaccinated at least with single dose. आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे. लेकिन जिसने भी अभी दूसरा डोज नहीं लिया है, आप उनको बोलिए कि जल्दी से जल्दी दूसरा डोज लगाएं. नाउ द 4th वेव की हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे 4th वेव आने के चांसेस है प्रेडिक्शन साइंटिस्ट की तरफ से. और ऑलरेडी हांगकांग में स्टार्टेड है 4th वेव. यू नो, हांगकांग पूरा कंट्री जो है अभी वो कोविड-19 के बुरी तरह से चपेट में आया हुआ है. I was just going through the news and I found out that this is just a matter of time that it is coming back to India. So, अब उससे बचने के लिए what we will do? The first very important thing, we have to identify the symptoms. Okay, symptoms किसी भी नॉर्मल बीमारी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कोविड-19 में. So, इस
वजह से हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल होना पड़ेगा। जो भी सिम्टम नजर आ रहा है, चाहे वो मौसम चेंज होने की वजह से हो या नॉर्मली ऐसे हो रहा है, आपको स्क्रीन पे कुछ है, कफ कफ हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, बुखार लग सकता है, मसल में पेन हो सकता है, ठंड लग सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, सूंघने और टेस्ट की क्षमता, स्वाद की क्षमता खत्म हो सकती है। तो इसको नॉर्मली हम ये समझ के ना चलें कि ओके वेदर चेंज हो रहा है या नॉर्मली ऐसे ही आया है ये चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज कोविड-19 का फोर्थ वेव हमें आने नहीं देना है। इमीडिएटली जब ये सिम्टम्स हम फील कर रहे हैं, चाहे खुद में या अपने फैमिली मेंबर्स में या अपने जानने वालों में, इमीडिएटली व्हाट वी विल डू, वी विल टॉक टू आवर डॉक्टर्स। डॉक्टर से बात इमीडिएटली करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स वो लोग हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप का मेडिकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, केयर एंड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और उस टाइम में वो अगर रिड्यूस नहीं होता है तो फिर वो आपको बोल सकते हैं आप एंटीजन टेस्ट पे जाइए या आरटीपीसीआर टेस्ट पे जाइए। और मेडिकेशन डिफरेंट है, नॉर्मल सोर थ्रोट, गले में खराश हो गई, उसका मेडिकेशन डिफरेंट हो सकता है, नॉर्मल फीवर का मेडिकेशन डिफरेंट हो सकता है, और कोविड-19 अगर है तो कितने टाइम तक कौन सी मेडिसिन लेनी है और उसके बाद क्या करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डूज एंड डू नॉट्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम सारे लोग जानते हैं। हैंड्स आर द कल्प्रिट, यू नो। कोविड-19 वायरस इंटर कहाँ से करता है? इंटर करने का रास्ता दो ही है, चाहे ये नोज है चाहे ये माउथ है, यहीं से कोविड-19 का वायरस इंटर करता है। एंड हैंड्स जो है वो अननोइंगली, यू नो, टचिंग आवर द एरिया अबव आवर नेक 50 to 250 times every individual do that depending on the personality। बच्चों में ज्यादा होता है, जैसे जैसे लोग थोड़े बड़े होते जाते हैं उनमें ये आदत कम होती है, लेकिन जितने ज्यादा बच्चे होंगे तुरंत से वो सिर छुएंगे, नाक छुएंगे, मुंह छुएंगे। लेकिन पर्सनालिटीज पे भी डिपेंड करता है। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड टचिंग अबव द नेक। और ये हैंड ही कल्प्रिट है कि यहाँ से गया ये हाथ, कहीं आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस यूज कर रहे हैं, पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हैं, वहां पे वायरस है, कहीं पे आपने हाथ लगाया वहां पे, और उसके बाद हाथ से आपने नोज और माउथ को टच किया। सो डोंट डू इट। हैंड सैनिटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ को साबुन और पानी से धोना बहुत जरूरी है। कितने सेकंड्स के लिए मिनिमम जरूरी है ये आप मुझे बताइए, क्योंकि ये भी देखना है कि आपके पास कितनी जानकारी है। मिनिमम साबुन और पानी से हाथ धोना कितने सेकंड्स या कितने मिनट्स के लिए जरूरी है? यू कैन टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स एंड आई विल सी दैट। उसके साथ साथ जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो वी नेवर हैव टू डू लाइक दिस, ओके, बिकॉज दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। यहाँ का मतलब क्या हुआ? फिर से जो भी छींका आपने, खांसा आपने, वो आपके फिंगर्स में गया, और बिना इसको वॉश किए अगर आपने किसी चीज को टच किया तो वो वायरस वहां पहुंच गया। अब उस चीज को किसी और ने टच किया, उसके बाद फिर वो वायरस उस तक पहुंच सकता है। और ये सिर्फ कोविड-19 के टाइम में नहीं है, माइंड इट, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हाथों की वजह से इतनी तेजी से फैलता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। ओके, सो जब भी आप छींकते या खांसते हैं तो आप ये यूज कीजिए। ओके, ये जगह नहीं है जहां किसी दूसरी जगह से टच होगा। अगर आपके पास हैंडकरचीफ नहीं है, नैपकिन नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। या कोई, अगर आपके पास नैपकिन है, टिश्यू पेपर है, एक पीस ऑफ क्लॉथ है आपके पास, किसी भी तरह का रुमाल, गमछा, व्हाटएवर, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो ऐसे यूज करेंगे, बट नेवर लाइक दिस। इसको छींका, खांसा आपने, ये गया दूसरी जगह। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन बहुत लोगों का आंसर सही नहीं भी है। मिनिमम कितने सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोना है? मैं अभी आऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं उसका डिटेल्स बताऊंगा क्यों ऐसा करना जरूरी है। बिकॉज वंस वी अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एनीथिंग ना, वी डू इट प्रॉपरली, वी टेक केयर ऑफ दैट। बट लॉजिक नहीं पता है तो हमारे लिए 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड सब एक ही समान है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ओके, जब भी आप छींकते हैं, खांसते हैं या अपना नाक वगैरह साफ करते हैं, तो उसके बाद का जो भी टिश्यू पेपर वगैरह यूज करते हैं आप, वो सारी चीजें जो है आपको
वो सारी चीजें जो है आपको वो एक क्लोज टिश्यू बिन में आपको डालना है, आपको ओपन में थ्रो कभी नहीं करना है। ओके, ये सिम्टम्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया। जैसे ही आपको लगे आप तुरंत डॉक्टर से बात कीजिएगा। और गैदरिंग्स जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, ओके, तो आपको उससे बचना है, वट एवर इट इज। कम हो गए हैं केसेस, आई नो दैट, सिचुएशन अभी बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप गैदरिंग में जाते हैं तो पूरी सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। बिना सावधानी के आप जाएंगे तो आप इन्फेक्टेड होकर के अपने पूरे परिवार को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। डू नॉट्स में बहुत आसान सी चीजें हैं। अगर कोई लग रहा है कि आपको किसी को बीमारी हुई है, कफ कोल्ड और फीवर फील कर रहा है, डोंट गो वेरी क्लोज टू देम। आप 1 मीटर 2 मीटर का डिस्टेंस लेकर के बात करें। डोंट टच योर आईज नोज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, मैंने बताया, हैंड्स आर कल्प्रिट। स्पीटिंग इन पब्लिक वाज नेवर एन एथिकल सेंस, और पब्लिक में थूकना तो अच्छी बात कभी है नहीं पब्लिक प्लेसेस पे। हाँ, उस पे हमेशा आपने ध्यान देना, अभी भी नहीं कभी भी नहीं। हम अभी हाथ धोने पर आएंगे वापस, एंड आई डेमोन्स्ट्रेट दैट टू। नाउ द थिंग इज दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, क्या हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? हम हमेशा अपने हाथ को प्रोटेक्टेड रखते हैं? देखिए, आजकल स्कूल में भी बच्चों को भी सिखाया जाता है, सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, तरह तरह के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचने के लिए हाथों का साफ रहना फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, अगर उनके पास क्लॉथ नहीं है तो चाहे तो वो रुमाल लेके खांसेंगी, चाहे ऐसे करके खांसेंगी, ओके, बट ऐसे नहीं। तो ऐसे ऐसे करने का मतलब वायरस और बैक्टीरिया हमने यहाँ पे जमा कर दिया, हम जा रहे हैं दूसरी चीज को छूने, टच करने। डिस्टेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। जहां भी भीड़ में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, और आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखता है जो कि बीमार है, आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ओके, नाउ क्या होता है पब्लिक प्लेसेस पे? मास्क आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही मैं दिखाया था, ये बहुत नॉर्मल सा, हर आदमी जहां भी जाता है वो यही देखता है। मास्क किसी का गले में लटका हुआ है, किसी का नाक खुला हुआ है, किसी की टाई खुली हुई है, कोई मास्क के ऊपर से ही अपने नाक और मुंह को खुजा रहा है, किसी ने सिर पे चढ़ा रखा है, किसी ने हाथ में ले रखा है। नो, क्यों? क्योंकि मास्क ऐसी चीज है जो आपको फ्रेश ब्रीदेबल एयर प्रोवाइड करती है सांस लेने के लिए, और इन केस अगर आप बीमार भी हैं तो जो आप एयर बाहर निकाल रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, उसमें भी फ्रेश एयर जाता है, वायरस वहीं से डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होने की वजह से ये बीमारी फैल रही है। मास्क रखना और मास्क प्रॉपर्ली यूज करना आर क्वाइट टू डिफरेंट थिंग्स। क्या करना है? सबसे पहले मास्क पहनने के पहले फर्स्ट वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स। हाथ ही गंदा है तो हमारा फिल्टर ही गंदा हो जाएगा, जो फिल्टर गंदा हो जाएगा तो हाउ इट इज गिविंग अस फ्रेश एयर। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, वॉश योर हैंड्स। और देखिए, मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये मास्क मैंने टाई से पकड़ा हुआ है, टाई से पकड़ के मैंने अपने कान पे चढ़ा लिया, नथिंग, आई हैव डन नथिंग एल्स, बस अब सिर्फ नोज पिन को यहाँ से मैंने टाइट किया, इट्स ओके। मैं मास्क को यहाँ ऊपर से टच नहीं कर रहा हूँ। चाहे ये मास्क हो आपका सर्जिकल मास्क, इसको कहते हैं 3 लेयर सर्जिकल मास्क, चाहे आपका N95 मास्क हो, द सेम थिंग यू हैव टू फॉलो। You don't have to touch the mask from inner or outer side. Just take the ties, go through it, round it. From here, just pinch the nose pins. That's it. Okay. हम लोग बात करेंगे अभी, प्रेजेंटेशन खत्म होते ही मैं आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। Just wait for my session to finish, and after that we will be talking. मास्क उतारने के पहले भी द फर्स्ट थिंग, अब बाहर से घूम के आ गया पूरा मास्क पहन के, मेरे हाथ तो इधर तो टच हुए होंगे। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग आई डू, आई विल वॉश माय हैंड्स, एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग द टाइज फ्रॉम हियर and I will be removing the mask like this. Okay, if it's N95 mask, I can use it again. If it's a surgical mask 3-ply, one time usable, then I have to safely dispose it. And mask disposition is now an environmental threat. You know that
जहां भी आप जाइएगा, आप हर गली मोहल्ले चौराहे पे देखिएगा ये मास्क चारों तरफ फेंका होगा। नो, डोंट डू दैट। अब इन्वायरमेंटल थ्रेट्स इससे आने लगे हैं कि इसकी टाइट जो है, ये जो है रबर होता है इसके अंदर में, और पक्षियां जो होती हैं वो इसको जा करके वो उत्सुकता बस देखती हैं क्या है, चबा लेती हैं, खा लेती हैं, एंड दे आर डाइंग। वन थिंग, there are a number of other environmental threats, so always dispose it at a safe place। एक safe place पे ही हम हमेशा इसको dispose करें, कभी भी ऐसे open में नहीं। Now the thing is that what I asked you, कितने सेकेंड्स तक मिनिमम हाथ धोना जरूरी है? मिनिमम हाथ धोना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दिया है, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर नहीं भी दिया है, बट उनका आंसर भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि किसी ने भी मिनिमम टाइप से नीचे का आंसर मुझे नहीं दिया, ऊपर का। तो मिनिमम टाइम जो है वो 20 सेकेंड, राइट? 20 सेकेंड हमको अपने हाथ को वॉश करना है। मैक्सिमम आप 30 सेकेंड भी कर सकते हैं, 40 सेकेंड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट कई लोग बोल देते हैं 2 मिनट या 3 मिनट हाथ को धोना है। 2-3 मिनट आप हाथ धो के देखिए, आप धो नहीं पाएंगे एक्चुअली। 2 मिनट में तो आदमी नहा करके बाहर निकल जाता है। नाउ ये 20 सेकेंड्स क्यों, ये बहुत जरूरी है समझना। ये देखिए आप, ये जो है, ये सपोज दैट कोविड-19 का वायरस इसके अंदर है, और उस कोविड-19 के वायरस के ऊपर ये क्या है, ये एक पूरा प्रोटीन का लेयर। ये पूरा प्रोटीन का लेयर जो है, यही इस कोविड-19 वायरस की रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्टिंग कोविड-19 वायरस। एंड इफ दिस प्रोटीन लेयर इज डिस्ट्रॉयड, the survival chances of COVID-19 is absolute minimized। कम से कम होकर रह जाता है, ये कोविड-19 का वायरस जिंदा रहेगा और इमीडिएटली वो मर जाता है, वो डेथ, उसकी मौत निश्चित है। लेकिन इस प्रोटीन लेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये साइंटिफिकली पाया गया है कि आपको मिनिमम अपने हाथ को 20 सेकेंड पानी और साबुन से धोना है। ओके, मिनिमम 20 सेकेंड, मैक्सिमम 30-40 यू कैन गो, बट 20 सेकेंड से नीचे का टाइम एक्सेप्टेबल नहीं है। जब हाथ धोएं भी तो फर्स्ट पाम टू पाम, हथेलियों को रगड़ना है, फिंगर्स के बीच में जाना है, हाथ के पीछे की सफाई करनी है, थम्स के बेस की सफाई करनी है, फिंगर्स के पीछे की सफाई करनी है, फिंगर नेल्स की सफाई करनी है, रिस्ट की सफाई करनी है, और उसके बाद सुखाना है, धो करके, धोने के बाद हाथ को सुखाना है। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ हैंड वॉशिंग। अगर आपने सिर्फ टैप के अंदर हाथ डाल के निकाल लिया बाहर 5 सेकेंड में, वायरस इज नॉट गॉन एनीवेयर, वायरस नहीं मरा। So 20 seconds तो मिनिमम है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इफ यू टेक 20 seconds वॉशिंग योर हैंड, दिस प्रोटीन लेयर इज डिस्ट्रॉयड और कोविड-19 वायरस मर जाता है। 20 सेकंड से नीचे की कोई गारंटी नहीं है, उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ हैंड वॉशिंग मास्क, थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग आज बहुत जरूरी हो गया है, बट सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए हमेशा लॉकडाउन और क्लोजर्स में नहीं रहा जा सकता है। ओके, लॉकडाउन एंड क्लोजर्स के अपने एडवर्स इफेक्ट्स हैं, अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से पूरा ह्यूमन लाइफ जो है, पूरा डे टू डे रूटीन एक्टिविटी है, वो डिसरप्टेड हो जाती है। चाहे वो बच्चों का स्कूल जाना हो, चाहे आपका ऑफिस जाना हो, चाहे आपका अपना सोशल सर्किल है, मिलना है, जॉगिंग करना है, एक्सरसाइज करना, तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। सो लॉकडाउन वहां पे होता है जब चीजें हमारे हाथ से बाहर चली जाती हैं, एंड वी हैव टू स्प्रेड एनी हाउ द स्प्रेड ऑफ वायरस, वी हैव टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ वायरस, तब वो सिचुएशन आता है। बट बिफोर दैट, उस सिचुएशन को अगर हम आने ही ना दें, if we start following properly COVID appropriate behavior, or now you can say any type of infectious disease appropriate behavior, तो वो सिचुएशन आए ही नहीं। जहां भी आप जाएं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मॉल हो, मार्केट प्लेसेस हो, रेस्टोरेंट्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, गैदरिंग को अवॉइड कीजिए। जैसे भी आपको लगे सामने वाले ने मास्क नहीं पहना, उससे डिस्टेंस बना के रखिए। जैसे ही आपको लगे कि सामने वाले की तबीयत ठीक नहीं, आप उससे 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए। और जब तक बहुत जरूरी ना हो, अवॉइड करना है हमें क्राउडेड प्लेसेस पे जाने के लिए। हाँ,
ओपनिंग अप होने के बाद अचानक से आपको याद होगा सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में जो गैप था, रीओपन होने के बाद अचानक से पहाड़ों के ऊपर एकदम से सैलाब उमड़ पड़ा लोगों का घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। उस सिचुएशन में फिर क्या होगा? फिर से वो वायरस कहीं गया थोड़ी है, वो तो यहीं पे, वो हमारे बीच में अभी भी। और द मोमेंट वी स्टॉप आवर एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको मौका मिल जाता है फिर से सबको लपेटने का। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट social distancing is must at this time if we want to avoid fourth wave of COVID-19. The next thing is, अभी तक हम बात कर रहे थे कि हो गया तो नहीं हुआ तो कैसे हमें बचना है, लेकिन सपोज दैट हो ही गया तो क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। दो सिचुएशन हो सकता है। अगर आपने कोविड-19 हो भी गया और इमीडिएटली आपने स्टेप्स लिए थे कि सिम्टम समझ लिए, तुरंत हमने अपने डॉक्टर से बात किया, तुरंत डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया कि ओके ये मेडिसिन 1 से 2 से 3 दिन लेके देखो, नहीं ठीक होता है तो RT-PCR टेस्ट करा लो, एंटीजन टेस्ट कराओ, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट वी विल सी। तो उसमें भी आ गया आपका कोविड-19, तो तुरंत से पकड़ में आ गया तो वायरल लोड नहीं बढ़ा। ओके, आपने बहुत ज्यादा टाइम उसको नहीं दिया तो माइल्ड इम्पैक्ट आपको कोविड-19 का हो सकता है। उस सिचुएशन में डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप होम क्वारंटाइन पे जाइए। और आप सबने अभी ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा, कभी भी आप कोई क्लिनिक जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या करते हैं डॉक्टर? सबसे पहले आपका कोविड टेस्टिंग करते हैं। अगर कोविड टेस्टिंग आपका पॉजिटिव आ जाता है तो इमीडिएटली वो बोलते हैं कि सर आप घर जाओ या मैम आप घर जाओ, हम टेलीफोन पे आपको बातचीत करेंगे या बताएंगे। जब नेगेटिव आता है तो आप हॉस्पिटल में फेस टू फेस डॉक्टर से मिल सकते हो, वो आपका इलाज करते हैं, देखते हैं। द सेम सिचुएशन हियर। ओके, माइल्ड केस आ गया आपको तो डॉक्टर बोलेगा कि आप घर पे रहो, आप लॉकडाउन में चले जाओ, क्वारंटाइन में चले जाओ और वहीं से हम आपका इलाज करेंगे। बट सीवियर केस होता है तो आपको तो हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता है, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद बहुत ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो खुद बीमार हैं। नाउ द डॉक्टर्स, द पैरामेडिक्स, द नर्सेज विल टेक केयर ऑफ अस। तो वहां पे हम बात नहीं करेंगे। हम माइल्ड केसेस जब होम क्वारंटाइन में है तब क्या करना चाहिए? द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एक वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए जिसमें एक सेपरेट टॉयलेट। वेल वेंटिलेटेड रूम जहाँ पे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट और साफ हवा, फ्रेश एयर आ रही है। और टॉयलेट क्यों सेपरेट होना चाहिए? क्योंकि देखिए टॉयलेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे घर के सारे फैमिली मेंबर्स भी उसको यूज कर रहे हैं और सब लोग अपने हाथों से उसको टच करते हैं, चाहे वो फ्लश हो, चाहे वो टैप हो, चाहे वो शावर हो, चाहे वो बाथरूम का डोर हो, डोर का हैंडल हो, सारे लोग टच कर रहे हैं। तो इफ द इन्फेक्टेड पर्सन इज ऑल्सो यूजिंग द सेम टॉयलेट and the other family members are also using the same toilet, the chances are there that the entire family will be infected. एंड ये हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में। एक बंदा होम क्वारंटाइन हुआ कोविड को लेकर के और पूरा परिवार उसका जो है वो भी अफेक्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि ये आइडियाज हमें नहीं पता था, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज तो वेल वेंटिलेटेड रूम। वेल वेंटिलेटेड भी क्यों? क्योंकि जहाँ पे फ्रेश सनलाइट, फ्रेश एयर आ रहा है वहाँ पे कोविड-19 वायरस के सर्वाइवल के चांसेस मिनिमाइज्ड होते हैं कंपेयर टू ए क्लोज्ड रूम, जहाँ पे एक बंद रूम हो, बड़ा सा क्या कहते हैं वो AC का रूम हो, जहाँ पे एकदम क्लोज्ड है सब कुछ, आपने दरवाजा खिड़की बंद करके रखा हुआ है, वहाँ पे ये वायरस ज्यादा समय तक सर्वाइव कर सकता है, बट ओपन में इतना टाइम तक नहीं कर सकता। जो रिलेटिव आपके पास आ रहे हैं, सपोज दैट बीमार पड़ने पर कई सारे दोस्त आते हैं, रिलेटिव आते हैं मिलने के लिए, अवॉइड दैट। फोन पे बात कर लीजिए, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए। इन केस अगर कोई आ भी जाता है तो 1 मीटर का डिस्टेंस बनाना, 2 मीटर का डिस्टेंस रखना, उससे ना भूलें। घर में अगर बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनके बच्चे होने वाले हों, या बहुत छोटे बच्चे हैं, ये सारे वल्नरेबल ग्रुप हैं। ओके, इनसे डिस्टेंस बना के रखिए जब होम क्वारंटाइन में रहते हैं। क्वारंटाइन का मतलब क्वारंटाइन होता है, क्वारंटाइन का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप पूरे घर में पूरी जगहों पे चारों तरफ आप घूम रहे हैं, चारों तरफ हर चीजों को टच कर रहे हैं। एक सिंगल कमरे में रहिए, 24 घंटा 24/7 मास्क लगा के रखिए, 24/7 सर्जिकल मास्क लगा के रखिए, ताकि छींकते हैं, खांसते हैं या बोलते हैं तो आपका वायरस जो है वो बाहर दूसरी जगहों पर ना जाए, दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर पाए।
बहुत सारी चीजें भी ऐसी होती है अपने हमारे हाउस होल्ड में, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, चाबियां हो गई, जो घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स भी यूज करते हैं, उनको यूज करने से पहली चीज तो आप बचिए, और अगर यूज करते भी हैं तो उसके बाद उसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, इसके पहले कि घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स यूज करें। ओके, ये सारी चीजें ध्यान रखिए। टॉयलेट्स बहुत जरूरी है, कॉमन यूज करने वाली चीजें बहुत जरूरी है। घर में अगर कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन है आपका, जैसे मैंने बताया, बुजुर्ग लोग या गर्भवती महिलाएं या बहुत छोटे बच्चे, उनसे दूरी बना के रखेंगे, और क्वारंटाइन में हम अपने रूम में ही रहेंगे जब तक हम नेगेटिव नहीं हो जाते। ओके, सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रेन, जब हम यूथ एंड एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं तो बड़े वाले तो सेम जो अभी तक हम बात कर रहे थे उसी पे चलेंगे, बट एडोलेसेंट चाइल्ड एक ऐसा एज ग्रुप होता है जिसको पेरेंट्स के, गार्जियंस की केयर टेकिंग की आवश्यकता होती है। एक 14, 15, 16 साल का बच्चा जो है वो आप सिखा दें उसको, वो करना तो शुरू कर देता है, but he is not completely on his own. He needs, or he or she needs guidance and support and direction and caretaking of their caretakers, guardians, elders. तो चीजें सारी वही, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, हैंड वॉशिंग, बट जहाँ एडोलेसेंट की हम बात करेंगे वहां पे हमें ध्यान रखना होगा, ये छोटे बच्चे हैं, ये प्रॉपरली चीजों को शायद फॉलो ना कर पा रहे हैं, उस जगह पे आपका उनको गाइडेंस देना, डायरेक्शन देना, वॉचफुल रहना बहुत जरूरी है। अचानक से एक 14 साल का बच्चा भाग के चला जाएगा डोरबेल बजते ही, ओके, डोरबेल बजा तो उसको पता चला कि मेरा बड़ा भैया या मेरे पापा या मेरी मम्मी आ गई, बट ही डजेंट नो कि दरवाजे पे एक डिलीवरी बॉय है, एक डिलीवरी करने वाला है, पोस्ट देने वाला है, और हो सकता है वो बीमार हो, वो छोटा बच्चा उसके क्लोज कांटेक्ट में बिना मास्क के चला गया, सामने वाला भी अगर बिना मास्क में है तो चांसेस आर देयर कि 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहा, इन्फेक्शन हो जाएगा। नॉट ओनली डिलीवरी बॉय, एनी स्ट्रेंजर कैन डू दैट। सो इन छोटे बच्चों के साथ जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, जानते हैं वो, कई बार वो भी हमें समझाते हैं कि ये है, ऐसे है, मम्मी पापा ऐसे करो, भैया ऐसे करो, बट फिर भी उन पे थोड़ा सा वॉचफुल रहना जरूरी है। हेल्पलाइन नंबर्स कोरोना का बहुत सारे पिछले स्लाइड्स में भी दिया हुआ है, और ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर की तरफ से। इस पे ज़्यादा जानकारी किसी को चाहिए तो वो इस पे कांटेक्ट कर सकता है। एंड along with that, thank you very much. I'll take a break here and I'll be open up for questions and answers. Since time is very less, I'm sorry that I rapidly wrapped up. But question answer में हम बात करेंगे, आपको जो भी question answer करना है, completely I'll take your questions and answers. Thank you so much, sir. As of now, we don't have any questions in the question answer box. I'll request the participants, if you share any, we'll take it up after the next session. And so you very rightly pointed out that while the cases have reduced, restrictions have been uplifted, but we should continue following COVID-19 appropriate behavior and also remind others around us, because the variants and mutants of COVID are uncertain and we should be prepared for fourth wave as predicted. So with this, I'll move on to the second technical session for the day on the topic vulnerability profile of India and DM mechanism. I would like to welcome Mr. Ranjan Kumar, who has over 12 years of experience in core risk reduction, integration of DRR and climate change adaptation, policy planning, and strategy in emergency response, training, and capacity building. Mr. Kumar is currently working as program associate in NIDM. Over to you, sir. अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, तब ना ऑडिबल होइएगा आप। ओके ओके सर। नाउ आई एम ऑडिबल सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir, you're audible. थैंक यू मैम, थैंक यू राका सर एंड सिंह सर। जो आज का प्रीवियस जो इनॉग्रल सेशन है उसमें केएम सिंह सर ने बोला कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, लोकल लेवल पर लोगों को कैपेसिटी। तो सबसे पहले अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट और जो हमारे यहाँ क्या प्रोफाइल है, हेजार्ड प्रोफाइल है हमारे कंट्री में, डिजास्टर
किस तरह का डिजास्टर किस एरिया में आते हैं और उसमें उसके लिए हमारे लिए प्रिपेयर्डनेस का प्लानिंग करेंगे उसके अलावा। तो आज का जो मेरा जो सेशन है बेसिकली हैजार्ड प्रोफाइल एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, किस तरह का मैकेनिज्म हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म काम करता है। तो बेसिक के इस सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल के बारे में, कंट्री के वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल के बारे में और डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म के बारे में, कैसे इसका इवैल्यूएशन हुआ और इसका क्या इतिहास है, किस तरह से बना, एक्ट कब आया, ये सारी चीज़ें आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन पहले अगर हम देखें कि हैजार्ड प्रोफाइल इंडिया का क्या है। जैसा कि अगर हम देखें एरिया वाइज, तो हमारा जो कंट्री है इंडिया है 7 लार्जेस्ट कंट्री है और जिसमें जो है 1.37 बिलियन पीपल जो है अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इस कंट्री का पॉपुलेशन है। और ये प्रीवियस इनॉग्रल सेशन में सिंह सर ने बताया कि हमारे जो जियोग्राफिक कंडीशन है या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है हमारे कंट्री का, वो हाईली प्राउन बनाता है हमारे स्टेट को, जो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उसको बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर प्राउन बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिजास्टर प्राउन एरिया है हमारे कंट्री में, जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डिजास्टर प्राउन माना जाता है। और इसमें अगर 1 बाय 1 जाए तो अगर एर्थक्वेक की डिस्ट्रिक्ट कौन से अगर देखें तो नियरली 59% जो लैंड मास है हमारे कंट्री का ये एर्थक्वेक प्राउन है। यहाँ पर मॉडरेट और हाई रिस्क इंटेंसिटी के एर्थक्वेक आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी जो है बेसिकली ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग प्रोसेस में। और नेक्स्ट अगर लैंड की बात करें, फ्लड के बारे में बात करें, नेक्स्ट हैजार्ड जो है या नेक्स्ट डिजास्टर जो फ्लड है जो मोर फ्रिक्वेंट है एवरी ईयर, प्रत्येक स्टेट में देखने को मिलता है कि बाढ़ आई हुई है। तो अगर बाढ़ की बात करते हैं तो 14 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें 12% लैंड है जो प्राउन टू फ्लड है और फ्लड और रिवर इरोजन के कारण अफेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये डाटा बेस जो है हमारे यहाँ वल्नरेबिलिटी है डिजास्टर का, हैजार्ड का जो वल्नरेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे को लोकल लेवल से लेकर टॉप लेवल तक को पूरे को स्ट्रेंथन करना, मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से अगर बात करें, अगर नेक्स्ट अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,500 किलोमीटर जो हमारा एरिया है, कोस्ट लाइन एरिया है, जहाँ पे कि साइक्लोन और सुनामी के हमेशा आते रहते हैं। और इस प्रत्येक ईयर हम न्यूज़ मीडिया में या बाई सोशल मीडिया के द्वारा हमें जानकारी मिलते हैं कि हमारे देश में आज ये साइक्लोन या ये सुनामी आने वाले हैं। और जो कि हम लोग अवेयर हैं, 2004 में जो सुनामी आया था जिसमें करीब 10,000 से एबव पीपल है जो उसमें मारे गए थे और बहुत सारे गांव और बहुत सारे कोस्टल जो जितने भी स्टेट से प्रभावित हुए थे। तो ये हैजार्ड प्रोफाइल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजास्टर प्लानिंग के लिए। अगर इंडिया के लिए डिजास्टर प्लान बनाते हैं या कुछ प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग से रिलेटेड आप अगर सोचते हैं तो प्रोफाइल को समझना बहुत जरूरी है। अगर वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ड्रॉट भी एक मेजर इशू है हमारे कंट्री में। और जहाँ की मैंने प्रीवियस जो ट्रेनिंग जो हुआ है हमारे ऑनलाइन, उसमें ज़्यादातर डिस्कस किया था कि आंध्रा और कर्नाटका में अगर यूनिसेफ ने एक स्टडी किया था, उसमें पाया गया था कि 10 ईयर में ज़्यादातर बच्चे प्रभावित हुए थे। उसमें आंध्रा में 28% और कर्नाटका में अबाउट 36% के आसपास बच्चे हैं जो ड्राउट से प्रभावित है। तो हमारा जो अनदर इशू है यहाँ पर हैजार्ड जो है, मेजर हैजार्ड जो हमारा देखने को मिलता है वह ड्राउट का है, जिसमें 68% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इज हाईली वल्नरेबल टू ड्राउट इन आवर कंट्री। तो आवर कंट्री में 68% जो है वो हाईली वल्नरेबल टू है ड्राउट का। और लार्ज ट्रैक्ट इन हिली रीजन एरिया फॉर लैंडस्लाइड और स्नो अवलांच। इसके अलावा जो हमारे जो लार्ज हिली एरिया है या जो हिली रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर डे टू डे हमेशा लैंडस्लाइड होते रहते हैं और स्नो अवलांच होते रहते हैं। तो ये भी एक मेजर डिजास्टर के रूप में देखा गया है हमारे कंट्री में। तो ये हैजार्ड की प्रोफाइल है। इसके अलावा अगर आगे देखें तो वल्नरेबिलिटी के दृष्टिकोण से देखें तो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर का एंड टेररिज्म
की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में। और तो ये सारी चीज़ें जो हमारे प्रोफाइल है, हैजार्ड प्रोफाइल है, इसको ध्यान में रखना होगा पॉलिसी प्लानिंग के समय में, या प्रिपेयर्डनेस या प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर अगर ले रहे हैं तो इसको अंडरस्टैंडिंग करना, लोगों के बीच में इस जानकारी को, लोगों को अवेयर करना। जैसा कि के सिंह सर ने कहा कि पंचायत लेवल पीपल को अवेयर करना है। अगर पंचायत लेवल पीपल अपने एरिया के बारे में अगर जाने कि किस तरह का हैजार्ड हमारे यहाँ हमारे लोकल एरिया में ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से अगर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हम रिड्यूसिंग कर सकते हैं, इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस जो हैजार्ड प्रोफाइल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब वन बाय वन अगर हम बात करें ट्रॉपिकल हैजार्ड के बारे में, तो सबसे पहला हम अगर डिस्कस करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो मैप जो हम लोग देख रहे हैं, विंड एंड साइक्लोन हैजार्ड मैप, उसमें अगर हम देखें तो हमारा जो कोस्ट लाइन एरिया है अबाउट 7,516 किलोमीटर है जो कवर करता है। और इसमें ज़्यादातर हाईली वनरेबल है एरिया, जो हाईली वनरेबल है, जो कि उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सारे जो एरिया हैं काफ़ी वनरेबल है साइक्लोन से। और सुनामी का जो पार्ट है, सुनामी से रिलेटेड जो एरिया है वो अबाउट 5,700 किलोमीटर एरिया है, जो हमेशा थ्रेट बना रहता है, जो सुनामी का थ्रेट बना जाता है। तो हाई वनरेबिलिटी स्टेट के रूप में अगर देखें तो ज़्यादातर उड़ीसा, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, केरला और पांडिचेरी ये हाईली वनरेबल हैं सुनामी और साइक्लोन से। तो ये भी एक हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का प्रोफाइल है। और इसमें इंडिया का जो सबसे लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जो ऊपर के मैप में हमने देखा, उसमें पूरे वर्ल्ड का 10% ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो इस एरिया में होता है। तो इसको ध्यान, और इसके अलावा साइक्लोन की बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट साइक्लोन भी देखा गया है, खास करके अरबियन सी में या बे ऑफ बंगाल की बात करें। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे साइक्लोन आए, जैसे साइक्लोन गुलाब हो गया या साइक्लोन तौकीते हो गया, जो कि मतलब रेगुलर प्रत्येक ईयर जो है अरबियन सी या बे ऑफ बंगाल में कोई न कोई साइक्लोन का इम्पैक्ट रहता है। तो इसको ये भी एक तरह से एक फ्रीक्वेंट होने वाला डिजास्टर है। इसके अलावा मोर साइक्लोन अकर इन द बे ऑफ बंगाल देन इन द अरबियन सी। अगर अनुपात लें उसमें तो 4.1 के रेशियो है। ज़्यादातर जो साइक्लोन होते हैं बे ऑफ बंगाल में होते हैं, अरबियन सी के तुलना में उसका रेशियो 4:1 है। तो इस तरह से ऑन एन एवरेज देखें, अगर बात है 5 to 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन पर एवरी ईयर, ऑफ हिच 2 और 3 कुड भी काफ़ी सीवियर, जिसमें से 2 और 3 ज़्यादा सीवियर होते हैं। हमेशा 5 to 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन एवरी ईयर आते हैं, जिसमें से 2 और 3 हो जाता है जो काफ़ी सीवियर कैटेगरी के साइक्लोन होते हैं हमारे कंट्री में। तो इसको खास करके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की बात करें तो इस एरिया में अगर देखें तो इस तरह के साइक्लोन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंट साइक्लोन फॉर्म इन द अरेबियन सी। अभी रिसेंट ईयर में कौन, आप चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं कि रिसेंटली कौन सा ऐसा साइक्लोन आया है अरेबियन सी में, उसका नाम आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। मैं पार्टिसिपेंट से प्रश्न, जिससे कि आप अवेयर हैं कि नहीं साइक्लोन के बारे में या आने वाले किसी डिजास्टर के बारे में। So I request to participants to write in chat box about the recent cyclone in Arabian Sea. Any participant? Anybody? Yes, sir. Okay. Only one answer come from participant. Any other participant? Okay. तो जैसा कि हम देखते हैं कि प्रत्येक ईयर 5 to 6 साइक्लोन आते रहते हैं, खास करके साइक्लोन कोस्ट लाइन एरिया में, जिसमें ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल का इलाका जो है, एरिया जो पड़ता है, उसमें साइक्लोन के जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही ज़्यादा है। और अरेबियन सी में भी साइक्लोन आता है। तो रेशियो जो बताए मैंने कि 4:1 का रेशियो होता है, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा होता है अरेबियन सी की तुलना में। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं,
और रंजन सर अपना स्लाइड भी मूव कर लीजिए, वो आगे Slide तो- नहीं मूव कर रहा। स्लाइड्स, आपका पीपीटी का स्लाइड्स थोड़ा मूव करते रहिए। अब मूव हो रहा है। हाँ मैं तो कर रहा हूँ, यहाँ तो दिखा रहा है। नहीं सर, अभी भी नहीं हो रहा है। फिर से स्टॉप करके। हाँ हाँ श्योर सर। Ranjan, first make it full screen so that it will move. मैं यहाँ फुल स्क्रीन में ही हूँ। Otherwise, you can close and share once again, or you may continue. Okay. I stop here and I share again. Sure, sir. Now okay? Yes, sir. So, just a minute. Now okay ना? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो देयर आर 13 कोस्टल स्टेट है हमारे यहाँ, जिसमें 84 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो हमेशा यूनियन टेरिटरी हमारे कंट्री में है, जो इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित होते हैं। और इसमें ज़्यादातर मेजर जो स्टेट हैं 4 स्टेट, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, और 1 जो है यूटी यूनियन टेरिटरी जो पांडिचेरी है ऑन द ईस्ट कोस्ट में जो पड़ता है, और 1 स्टेट गुजरात है, जो ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित होते हैं, या ईच एंड एवरी ईयर इस तरह के साइक्लोन आते रहते हैं। और वेस्ट कोस्ट की बात करें तो वेस्ट कोस्ट और हाईली वल्नरेबल टू साइक्लोन डिजास्टर, और वेस्ट कोस्ट भी ज़्यादा हमेशा इस तरह के से प्रभावित होता है। नाउ अब बात करते हैं सुनामी का। तो सुनामी जो होता है एक ओशियन में एक सीरीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव के जनरेट होने के कारण होता है, और एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ के कारण होता है, जो डीप सी में होता है। और इसका प्रभाव जो होता है कि इसका जो लेंथ होता है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो लेंथ होता है 100 किलोमीटर और उससे अधिक होता है। और ये जनरेट सडन, ये जो सुनामी जो जनरेट होता है सडन डिस्प्लेसमेंट इन सी फ्लोर कॉज बाई अर्थक्वेक। तो जो वाटर जो है, अगर डीप बेड में इस तरह का अर्थक्वेक आता है तो सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज स्केल में वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके कारण सुनामी जनरेट होता है। तो सुनामी की बात करें तो इसका जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, और इसके बाद जो है लैंडस्लाइड की बात करते हैं। तो लैंडस्लाइड सुनामी के बारे में मैंने समझ लिया कि सुनामी किसको कहते हैं। वो सी बेड में जनरेट होता है, और उसमें लार्ज स्केल में इसमें वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसके कारण बहुत जो ज़्यादा वेव लेंथ का, अगर इस तरह का कोई वेव लेंथ का कोई अंदर सी बेड में इस तरह का जनरेट होता है, तो उससे वाटर जो है ऊपर में काफ़ी ऊंचाई तक उठता है, और जिसके कारण सुनामी का सुनामी देखने को मिलता है। अब लैंडस्लाइड की बात करें तो रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल फिनोमेना, ये एक नेचुरल फिनोमेना, हैवी रेनफॉल के कारण, या स्नो मेल्ट के कारण, या ग्रेविटी, या वोल्केनिक इरप्शन, या अर्थक्वेक, या मैन मेड एक्शन के कारण लैंडस्लाइड के केसेस ज़्यादा होते हैं। खास करके हिली रीजन की बात करें, हिली एरिया में, जैसे उत्तराखंड का इलाका हो या शिमला, उधर जितने भी जो हिमालयन रेंज के नज़दीक में जितने भी स्टेट पड़ते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लैंडस्लाइड आकर हिली एरिया, खास करके हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में ज़्यादातर लैंडस्लाइड होते हैं। और ये अगर एस्टिमेट देखें तो 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंडस्लाइड आकर इन हिमालयन रेंज में जो है 30% जो है जो लैंडस्लाइड ज़्यादा का रेंज है पूरे अगर रेंज देखें तो लैंडस्लाइड आर कॉमन इन वेस्टर्न घाट में हमेशा कॉमन देखा गया है। अब बात करेंगे स्टॉर्म सर्ज का। ये भी एक तरह का हैजार्ड है जो कि हमारे कंट्री में होने के चांसेस हैं। और स्टॉर्म सर्ज क्यों होता है? एक कोस्टल फिनोमेना, इसको फिनोमेना बोलते हैं। और ये है द इनहेरिटेड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ साइक्लोन की तरह भी इसका एक डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है। और ये क्यों होता है? अब नॉर्मल राइज ऑफ वाटर जनरेट होता है वाई स्टॉर्म इवन एंड एबव द प्रिडिक्टेड एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के कारण होता है। तो एक स्टॉर्म सर्ज भी एक अलग इशू है। और दिस राइज इन वाटर लेवल कैन कॉज एक्सट्रीम फ्लडिंग when storm surge coincide with normal high tides reaching up to 6 meter or more than above in some cases। तो इसमें ज़्यादातर जो है मोस्ट कैजुअलिटी ड्यूरिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन के समय में देखा गया है। तो अगर एज ए रिजल्ट ऑफ स्टॉर्म सर्ज, तो मोस्ट कैजुअलिटी ड्यूरिंग द ट्रॉपिकल अगर एज द रिजल्ट ऑफ, तो ये स्टॉर्म सर्ज भी एक अलग हमारे यहाँ इस तरह के कोस्टल एरिया में हैजार्ड देखे जाते हैं।
अब हम बात करेंगे फ्लड का। हम लोग डेली एवरी ईयर हम लोग सुनते हैं कि हमारे जैसे बिहार हो गया या असम हो गया, ये सारे एरिया फ्लड से प्रभावित रहते हैं। तो अगर वल्नरेबिलिटी वाइज देखें तो जो है ये जो 12% ऑफ टोटल लैंड मास है जो हमारे यहाँ, वो मोस्ट ऑफ द स्टेट इन द कंट्री आर वल्नरेबल टू फ्लड इन वेरियस डिग्री। 12%। तो जो जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं, मैप में जैसे बिहार का या है, यूपी है या मध्य प्रदेश है या असम है, ये सारे जो एरिया हैं, खास करके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का जो मैप अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें ज़्यादातर जो है फ्लड अफेक्टेड रहते हैं। और प्रत्येक ईयर यहाँ बाढ़ आती है जिससे जान माल की क्षति होती है। तो ये भी एक मेजर इशू है हमारे यहाँ, मेजर प्रॉब्लम है हमारा। और नेक्स्ट जो अगर बात करें तो फ्लड की बात करें तो फ्लड में ज़्यादातर जो है, क्योंकि टाइम की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। तो फ्लड इफेक्ट एन एवरेज एरिया ऑफ अबाउट 7.5 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। अगर इससे होने वाली क्षति या इसके इफेक्ट की बात करें तो 7.5 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर है जो एरिया जो है जो इफेक्ट होता है फ्लड से हमारे कंट्री में। और फ्लडिंग इज पर है द मोस्ट क्रिटिकल एंड कॉमन क्लाइमेट रिलेटेड हैजार्ड है जो हमारे कंट्री में होता है। और इसका जो बात करें अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन फ्लड, जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन है या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर है, उसके अनुसार अगर बात करें तो फ्लड आउट ऑफ 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया ससेप्टेबल टू फ्लड इन आवर कंट्री, और इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड रीजनेबल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू नियरली 80%। तो इसके लिए तो इस तरह ये जो हमारा डाटा बेस है 40 मिलियन हेक्टेयर जो है काफ़ी फ्लड प्रभावित क्षेत्र माना गया है, और इसको है कि मतलब रिजनेबल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये हो गया फ्लड के बारे में हम बात करें। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं earthquake का। earthquake जिससे जैसा कि मैंने ऊपर की हाईली वल्नरेबल, जो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, हाईली वल्नरेबल, मोस्ट ऑफ द स्टेट हाईली वल्नरेबल टू earthquake। तो वल्नरेबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो हमें जो मैप में जैसा दिख रहा है 58.6% ऑफ द टोटल लैंड मास जो है हमारे कंट्री का, वो हाईली वल्नरेबल है, जिसमें ज़्यादातर 4 to 5 मैग्नीट्यूड के 4 से 5 मैग्नीट्यूड के earthquake आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें ज़्यादा वल्नरेबल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो हिमालयन रेंज का बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड है, पंजाब है, दिल्ली है, गुजरात, बिहार, नॉर्थ ईस्ट एंड न्यू स्टेट, ये ज़्यादा हाईली वल्नरेबल है earthquake से। तो ये भी एक में इस पर भी अभी बहुत सारे काम हुए हैं, और बिल्डिंग हम लोगों ने बिल्डिंग बायलॉज या earthquake रेसिस्टेंट बिल्डिंग, लैंड यूज प्लानिंग आदि ज़्यादातर प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिपेयरनेस प्लानिंग किए हैं इस लेवल पे, इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। तो नियरली ऊपर का जैसा कि हम मैप में देखा कि 59% के करीब है जो यहाँ पे हाईली वल्नरेबल है, और जिसमें ज़्यादातर जो मेजर earthquake का शौक जो हमारे यहाँ हिस्ट्री है earthquake के बारे में बात करें तो 2001 में भूज एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में बात करें अक्टूबर 2005 में इस तरह का भूकंप आया था। सिक्किम में 2011 में भूकंप आए थे, इसमें भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। तो वल्नरेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 7 स्टेट इन नॉर्थ जो है उसमें ज़्यादातर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो 7 स्टेट जो हैं, और अंडमान निकोबार पार्ट ऑफ द 3 स्टेट इन द नॉर्थ, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड जो है सिस्मिक जोन 5 में आता है, जहाँ पर कि बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड के earthquake आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये है हमारा earthquake रिलेटेड वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल हमारे कंट्री का। इसके अलावा वाइड स्प्रेड ह्यूमन एंड मटेरियल, जिस तरह का भूकंप आता है इसमें ज़्यादातर चांसेज होते हैं कि लार्ज स्केल में जो है ह्यूमन लॉसेज या मटेरियल लॉसेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेज होते हैं। तो ये चीज़ें जो है earthquake जो है मेजर जो earthquake प्रॉन वल्नरेबिलिटी है हमारे कंट्री में 59% है। ड्राउट की बात ऊपर मैंने पूरी तरह से किया था कि ड्राउट भी एक लॉन्ग पीरियड ड्राइव, ये जो वेदर कंडीशन के कारण होता है। अगर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर रेनफॉल या इनसफिशिएंट प्रेसिपिटेशन के कारण ये ड्राउट ज़्यादातर हमारे कंट्री में होते हैं। ये ज़्यादातर जो ड्राउट प्रभावित एरिया हमारे में है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और चंडीगढ़ है, झारखंड है या आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट जो हमेशा ड्राउट
प्रभावित रहते हैं। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि about 68% कंट्री तो हमारे कंट्री में अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो 68% जो है कल्टिवेटेड एरिया जो हाईली वल्नरेबल टू ड्राउट है। और एक अनदर रिस्क जो रिसेंट जो अभी वर्क है, जो हमारे यहाँ सिटी जो अर्बनाइजेशन हो रहा है या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ने से, जो सिटी में पॉपुलेशन बढ़ने से अनदर दूसरे तरह का एक रिस्क भी बढ़ गया है, हमारे को देखने को मिला है इससे। और जो रिस्क है जी, तो ज़्यादातर जैसे दिल्ली में हो या जो और बिग सिटी मुंबई हो, ज़्यादातर केसेज जो है स्ट्रक्चरल कोलैप्स के केसेज ज़्यादा पाए जा रहे हैं। जैसे कहीं लक्ष्मी नगर में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था, उसी तरह से यहाँ मुंबई में भी जो रेलवे ब्रिज फॉल डाउन हुआ था, उसमें भी बहुत लोग मारे गए थे। तो एक अनदर तरह का रिस्क है। उसके अलावा जो इनॉग्रल सेशन के दौरान सीएम सिंह सर ने ज़्यादा डिस्कस किया था कि फायर के केसेज जो ज़्यादा हैं, उसमें उन्होंने बताया था कि ये हमारा जो वेस्ट बंगाल में जो फायर हुआ था उसमें भी बहुत सारे लोग प्रभावित होते। तो इस नया जो उभर के आया है, नया तरह का जो रिस्क उभर के आया है, खास करके अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में, ये भी एक तरह का एक मेजर डिजास्टर एक थ्रेट है हमारे कंट्री के लिए। ये क्यों हो रहा है? इनएडुकेट रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑन द बिल्ट एनवायरनमेंट इंक्रीज एर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी, और इस तरह से इनसफिशिएंट टेक्निकल एक्सपर्टीज के कारण ये सब जो नए जो रिस्क हैं हमारे सिटीज में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और पीपल जो लोग हैं ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं इस तरह के डिजास्टर से, रिस्क से। अब एक एक्टिविटी और है जो कि मैं आप लोगों को उनसे के बीच रख रहा हूँ। इसमें है कि आपको बताना है जिस एरिया में आप रह रहे हैं, उस एरिया में आपके यहाँ के उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का ज़्यादातर वल्नरेबिलिटी है, ज़्यादातर फ्लड होते हैं कि ज़्यादातर थंडर स्टॉर्म होते हैं या हीट। तो आप चैट बॉक्स में है जो आप लिख के बता सकते हैं। जैसे ये है तो आंध्रा में किस तरह का है, आंध्रा से लोग जो हैं वो बता सकते हैं उनके एरिया में क्या क्या है। उसी तरह से गुजरात में किस तरह का वल्नरेबिलिटी है। तो मैं आपके बीच में ये एक्टिविटी दे रहा हूँ। आप चैट बॉक्स में इस एक्टिविटी में भाग लें, पार्टिसिपेट करें और अपने अपने एरिया के जो वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में लिखें। दिल्ली हीट वेव, ओके। ओनली वन आंसर ही आता है, सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। पार्टिसिपेंट ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पार्टिसिपेंट से कि अपने अपने एरिया का वल्नरेबिलिटी के बारे में बताएं कि किस तरह का डिजास्टर आपके एरिया में ज़्यादा प्रभावित करता है होता है। उसको चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जैसे शिप्रा गिरधर ने लिखा दिल्ली में ज़्यादातर हीट वेव के चांसेस होते हैं। अमित कुमार झा जी ने लिखा कि फ्लड, लेकिन एरिया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी लिखें, केवल फ्लड लिखने से नहीं होगा। अमित कुमार झा जी, आप भी जो आंसर दिया है फ्लड है, लेकिन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार, ओके। और ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डिजास्टर रिस्क जो मैनेजमेंट है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो उसके पहले हम डिजास्टर सिनेरियो को देख लेते हैं। 1950 से लेकर अगर 99 तक अगर देखें जो जितने भी मेजर डिजास्टर उसमें हुए हैं, उसमें जो लॉसेज हुए हैं 46,090 के करीब है जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। लेकिन उसके बाद की बात अगर देखें 2001 से अगर 2005 की बात का अगर हम उसको डाटा को एनालिसिस करें तो उसमें देखते हैं कि करीब 30,218
और जो लॉसेज जो प्रॉपर्टी का हुआ है 59 करोड़ जो लॉसेज हुआ है। तो अगर देख फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के अनुसार अगर देखें तो 2001 के बाद जो वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है डिजास्टर का। तो इसलिए हमको अपने आप को इसके लिए काम करना होगा, अपने आप को प्रिपेयर्ड होना होगा एनी टाइप ऑफ डिजास्टर के लिए। तो अगर डाटा का एनालिसिस करें तो पिछले अगर 2 डिकेड्स की बात करें, पिछले 2 डिकेड्स की बात करें तो वल्नरेबिलिटी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर बढ़ा है। तो जो कि इनॉग्रल सेशन के दौरान केम सेशन ने बताया कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर है वो ज़्यादा बढ़ा है और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। उसमें बहुत तरह के डिजास्टर जैसे कोविड-19 अभी पैंडेमिक जैसे हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइक्लोन और जो आए हैं या फ्लड एवरी ईयर आ रहे हैं। तो जो देख रहे हैं अगर लॉस वाइज देखें, अगर ये देखें तो जो फ्रीक्वेंसी वाइज अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अगर स्टडी करें डिजास्टर का तो 2001 के बाद जो उसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा इसके हिसाब से। और इसके लिए हमारे इस तरह के प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो कि इसको पॉलिसी और प्लानिंग लेवल पर काम करती है। तो जब बात करते हैं डिजास्टर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या हमारे कंट्री में किस तरह का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, तो 2001 के पहले जो था डिजास्टर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कोई भी डिजास्टर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए। लेकिन जब 99 में सुपर साइक्लोन आया उसके बाद हाई पावर कमेटी बनी अंडर द चेयरमैन ऑफ जेसी पंत के अंदर में एक सेटअप कमेटी सेटअप किया गया और उसने रिकमेंड किया। उसके अलावा भूज की बात करें 2000 आफ्टर भूज के ये जो 2 कमेटियां बनी हमारे यहाँ, एक हाई पावर कमेटी और दूसरा ऑल पार्टी नेशनल कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया कि उनके रिकमेंडेशन के अनुसार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो MHA को दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जून 2002 में ट्रांसफर कर दिया गया और ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब MHA के अंदर में आ गया। और MHA ने उसी समय है जो 2005 में हमारे यहाँ एक्ट बना और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश ऑर्डर ऑफ इन सितंबर 2005 में इस्टेब्लिश हुआ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हमारे यहाँ, पैराडाइम शिफ्ट हुआ और उसके अलावा हम लोग ने रिलीफ सेंटर से प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग और पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में हुई उसके बाद और उसमें उसका एक नया विजन आया, हमारे एक्ट के अनुसार एक नया विजन आया डिजास्टर मैनेजमेंट में कि हमको ज़्यादा फोकस कैपेसिटी डेवलपमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस पे ज़्यादा फोकस करना है। और उसमें ज़्यादातर जो विजन था हमारा ऑब्जेक्टिव जो कंट्री का हुआ इस डिजास्टर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कि टू बिल्ड ए सेफर एंड डिजास्टर रिजिलेंट इंडिया को एक सेफर और डिजास्टर रिजिलेंट इंडिया बनाना है बाय डेवलपिंग ए होलिस्टिक प्रोएक्टिव मल्टी डिजास्टर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, एक स्ट्रेटजी के साथ उसमें मल्टी हैजार्ड को भी ध्यान में रखते हुए प्रोएक्टिव अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटजी बनाया जाए और लोगों के बीच में एक ऐसा कल्चर डेवलप का प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स के कल्चर को डेवलप किया जाए जिससे कि हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट लोकल लेवल पे ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। एक विजनरी आइडिया के साथ आया आफ्टर 2000 जो हमारे यहाँ एक्ट बना उसमें इसको ध्यान में रखकर पैराडाइम शिफ्ट किया हुआ, ज़्यादा फोकस किया गया प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पे। अब टाइम बहुत कम है इसलिए मैं ज़्यादा इस एक्ट में बहुत सारे सैलिएंट फीचर दिए गए हैं जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसका अप्रोच जो था कि जो शिफ्ट हुआ है रिस्पॉन्स सेंट्रिक टू होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए रिलेटेड टू प्रिपेयर्डनेस, प्लानिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, तो हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए अपने डेवलप करना, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को डेवलप करना अपने कंट्री में। और ये जो उसी समय इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना और लीगल अथॉरिटी की उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा कई एक प्रोविजन फाइनेंशियल मैकेनिज्म के बारे में दिया है जिसमें बहुत सारे फंड के न्यू फंड क्रिएट किए हैं, उसमें रिस्पॉन्स फंड, मिटिगेशन फंड की बात हुई टाइम। उसके अलावा हमारे यहाँ
एनडीए में बना, जो एपेक्स जो अंडर द चेयरमैन, जिनके चेयरमैन पीएम होते हैं, और सेटअप किया गया। और डीएम स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कंट्री में 3 लेवल का स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जो डेवलप किया गया, उसमें नेशनल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो हमारे एक्ट में इसके प्रोविजन दिया गया, उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीआरएफ, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है उनको ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जो उसमें कंपोज किया गया, इंक्लूड किया गया। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात करें तो इसमें सेक्रेटरी ऑफ 14 मिनिस्ट्री एंड चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी कमेटी एंड अब हम बात करें कि नेशनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, 3 टायर जो मैकेनिज्म कहते हैं, उसमें सेंट्रल लेवल पर एनडीए हो गया। एनडीए के जो है उसका काम है कि प्रोवाइड गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटजी। इसके चेयरमैन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसमें वाइस चेयरमैन भी होते हैं, और इसमें कई मेंबर होते हैं। तो इसके अलावा स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। इसमें एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होता है जो कि चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जिसके हेड, और इनका काम है कि कोऑर्डिनेट और मॉनिटर जो है पॉलिसी, प्लान और स्टेट को मॉनिटर करना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी डिजास्टर उसको मैनेज करते हैं, और इसके चेयरपर्सन होते हैं जिला परिषद, और वो चेयरपर्सन जो होते हैं इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है का सिस्टम है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। इसके अलावा रिस्पांस के एरिया में अगर बात करें तो वहाँ भी 3 टायर मैकेनिज्म है, जिसमें नेशनल लेवल पर एनडीआरएफ है, जिसमें कि ज़्यादातर जो डिफेंस, सीएपीएफ एंड अदर सेंट्रल एजेंसी के लोग उसमें उसको इंक्लूड किया गया है। स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स काम करती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट से जो सिविल डिफेंस जिसकी बात करते हैं, लोकल पुलिस या सिविल डिफेंस, फायर, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। तो ये 3 टायर मैकेनिज्म है। और एनडीआरएफ का रोल जहाँ तक बात करें तो ड्यूरिंग डिजास्टर की सिचुएशन में एक स्पेशलाइज्ड टाइप का रिस्पांस फोर्स है जो कि इमीडिएट रिस्पांस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसका प्रो एक्टिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग इम्पेंडिंग डिजास्टर सिचुएशन में हो तो इमीडिएटली इसको एनडीआरएफ का सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जब कोई डिजास्टर नहीं होता उस समय भी एनडीआरएफ है जो कैपेसिटी बिल्डिंग में कम्युनिटी लेवल पर ट्रेनिंग या प्रिपेयर्डनेस में ज़्यादातर सपोर्ट करता है। तो इसका मेन रोल है क्विक रिस्पॉन्स देना, सर्च एंड रेस्क्यू में रेस्क्यू प्रोवाइड करना। इसके अलावा अगर कोई मेजर डिजास्टर होता है, इन केस ऑफ मेजर डिजास्टर, तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो हेडेड है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में वो एक्टिव हो जाता है। और नेशनल लेवल पर नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है जिसके होम सेक्रेटरी लेवल पर सेक्रेटरी है जो उसको उनके अंडर में मॉनिटरिंग में सारे जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन या कोई भी मेजर डिजास्टर होने पे उनका सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा द इंडियन आर्म फोर्स एंड सीएपीएफ जो है ऑल्सो कॉल्ड अपॉन टू इंटरवीन जब मेगा डिजास्टर होता है जो कि बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ स्टेट हो जाता है नेशनल लेवल पर, तब इसकी जरूरत पड़ती है, इसको एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। हमारे यहाँ जो पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं तो उसमें 7 पिलर हैं जो स्ट्रेटजी हमारा है जिसपे पैराडाइम शिफ्ट वर्क करता है। उसमें प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस पे ज़्यादा फोकस और कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और इसके अलावा पोस्ट फेज में ज़्यादातर फोकस रिस्पॉन्स, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी, ये जो हमारे यहाँ 7 पिलर हैं इसको बिल्ड बैक बेटर जो कि आगे फल के लिए ये स्ट्रेटजी हमारे यहाँ आफ्टर पैराडाइम शिफ्ट के बाद इस पे हमारा मैकेनिज्म काम करता है। तो थैंक यू। Thank you, sir. Sir, at present, question answer box में 2 questions ही हैं which I'll take up. और एक chat box में query आ रही है regarding registration, so I would want to clear that for the participants. अगर आपने NIDM की वेबसाइट पे पहले से रजिस्टर करा हुआ है for some other course और ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आपको दोबारा रजिस्टर नहीं करना है, आपको सिर्फ दोबारा इस प्रोग्राम के लिए इनरोल करना है। तो इसी टॉपिक जो मैं टॉपिक भी आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ, the subject is the 3 days online training program on engaging youth and adolescents in disaster risk management. इसी टॉपिक से
वहाँ टेबल में टाइटल होगा और उस प्रोग्राम के लिए आपने एनरोल करना है, आपने दोबारा रजिस्टर नहीं करना है, और जिन्होंने पहले नहीं करा है दे विल हैव टू रजिस्टर. So it is just one time registration. Okay, so I'll now move on to the questions that we have in chat box. I think these are related to the first presentation, the first session. Meanwhile, if somebody else has any questions related to the second session as well, please put up in the question answer box. We'll take it up after this. One question is that how to save the children below 7 years. And I think this is related to the COVID-19 presentation. Sir, if you could. देखिए एक चीज तो है कि देखिए ये ट्रेनिंग जो है पार्टिकुलरली यूथ एंड एडोलेसेंट के ऊपर है, फिर भी ये क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट हो जाता है. 7 year old kid is a very young kid. ओके, कई बार हम लोग देखते हैं कि जब वो मास्क पहनते हैं छोटे बच्चे तो तुरंत से वो उठा के फेंक देते हैं, वो कंफर्ट लेवल फील नहीं करते उसमें. सिमिलरली विथ हैंड वॉशिंग ऑल्सो, एक 6-7 साल के बच्चे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि हैंड वॉशिंग कितनी देर तक करनी चाहिए, साबुन पानी से कैसे हाथ को अपने साफ करना है, आगे से पीछे से दाएं से बाएं, मतलब उंगलियों के बीच से नेल से. सिमिलरली मैंने जो एग्जांपल भी दिया था कि कोई अचानक से डोर पे आता है, आपके दरवाजे पे आता है और बच्चा भागते हुए चला जाता है, उसे नहीं पता कि सामने कौन है, प्रोटेक्शन उसके पास लेस है. तो उस सिचुएशन में देखिए चाहे ये तीनों चीजें हों और उसके अलावा भी जब बच्चे खेलते रहते हैं आपस में, उसमें भी अगर बच्चा जो है, आप देखिएगा बच्चों में ज्यादा एक हैबिट होता है कि हमेशा वो खेल के किसी चीज को छू के अपने नाक को या मुंह को इमीडिएटली टच करते हैं. तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स की, केयर टेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है. सिंपली जब वो बच्चा खुद को अपने ढंग से प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं है, तब जो भी गार्जियन है, जो भी केयर टेकर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है. 7 years के बच्चे के मामले में जो भी उसके केयर टेकर्स हैं, दे हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल कि अगर वो बच्चे को साथ लेके कहीं जा भी रहे हैं तो वहां भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, प्रॉपरली बच्चा किसी चीज को छू करके अचानक से अपने नाक मुंह को तो टच नहीं कर रहा है, दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है तो भी वो बच्चे सुरक्षित हैं, सब लोग सुरक्षित हैं या नहीं. सो इस सिचुएशन में फर्क यहाँ पे ये करना होगा कि जो 14-15 साल का बच्चा है, जो कि एक एडोलेसेंट बच्चा है, उसको एक बार डायरेक्शन देते हैं, आप गाइडेंस देते हैं तो वो चीजों को समझ जाता है. बट सेम चीज इज नॉट हियर विथ यंगर किड्स. वो 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे उतनी आसानी से नहीं समझ सकते. जब 14-15 साल के बच्चों को भी हमारी गाइडेंस और हमारे केयर टेकिंग की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, और छोटे बच्चों के मामले में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो वी हैव टू बी केयरफुल. एंड वंस अगेन आई रिमाइंड यू, कोविड कहीं नहीं गया है. अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो होगा, कमिंग टाइम विल बी अगेन, आई डोंट नो व्हाट विल बी द सिचुएशन. सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थैंक यू मनिका. थैंक यू सर. सर एक क्वेश्चन है कि कोरोना की चौथी लहर के बारे में क्या संभावनाएं हैं? देखिए संभावनाएं तो व्यक्त की जा सकती हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं होता है. जैसा मैंने आपको बताया, अभी हांगकांग में और दूसरे कई देशों में 4th वेव ऑलरेडी वहां पे है, लोग परेशान हो रहे हैं. दिस इज मैटर ऑफ टाइम. अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कब तक ये हमारे बीच में आ रहा है. और अभी रिसेंटली एक IIT की स्टडी भी आई है, उन्होंने वार्न किया है कि भाई मई जून द 4th वेव विल बी हियर. सो अल्टीमेटली वी हैव टू बी केयरफुल. प्रेडिक्शन सिर्फ किए जा सकते हैं, बट ऑन ग्राउंड आने वाले टाइम में क्या होगा, ओनली द टाइम विल टेल अस. हमारे हाथ में जो है, वी हैव टू डू दैट. हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है. हमें अपने परिवार को, अपने जानने वालों को, अपने आस पड़ोस को, सबको जागरूक भी करना है, ताकि अगर 4th वेव होता भी है तो हम सब सुरक्षित रहते हैं. Thank you, sir. Sir, another question is, I'll read it out for you. How can we motivate tribal people towards vaccination? They're very afraid to take vaccination, and still they are sticking to their ration process in this pandemic. एग्जैक्टली सिर्फ ट्राइबल इश्यूज की बात नहीं है. ऑल द पीपल, ग्रासरूट लेवल पीपल, यहाँ पे एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी या जो एडुकेशन जो है वो उस लेवल तक का नहीं है. वहाँ पे हमने अपने वॉलेंटियर्स के थ्रू, अपने जागरूक लोगों के थ्रू ये चीज उन तक कहीं ना कहीं पहुँचानी ही है.
चीजें उनके लिए भी वही है, रेजिलियंस उनका स्ट्रांग हो सकता है, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग हो सकती है, हो सकता है उनका लाइफ स्टाइल जिस तरह से वो पले बढ़े हैं या आगे बढ़े हैं वो कई लेवल पे हमसे आगे भी हो सकते हैं और कई लेवल पे वल्नरेबल भी हो सकते हैं। तो आइडिया ये है कि देखिए जरूरी नहीं, कोविड-19 तो नहीं देखता है ना कि आप बिहार से हैं या राजस्थान से हैं या दिल्ली से हैं, हम आपको पकड़े या ना पकड़े। आप इस उम्र के हैं, आप 14 साल के हैं, आप 10 साल के हैं, आप 60 साल के बुजुर्ग हैं, हम आप पे आए या ना आए। तो सिमिलर विद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में भी वही बात आती है, वो ट्राइबल पीपल हो या गांव के किसान हो या महिलाएं हो, ऐसा कोविड-19 के पास कुछ भी नहीं है कि हाँ किसी को देख के वो पकड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबके लिए वही, चाहे वो हम शहर में पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो रूरल एरियाज में रहने वाले ग्रास रूट लेवल के लोग हों। फैसिलिटीज वहाँ पे कम है, उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज वहाँ पे कम है तो उस रिसोर्स का सबसे बढ़िया से मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। जो टेक्निकल फैसिलिटीज हमारे पास हैं हम यूज नहीं कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं वो उनके पास नहीं है, तो वहां पे हमें कैसे पेनिट्रेट करना है। और वो एग्जैक्टली हमारे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, जो हमारा पूरा टीम होता है, फौज होती है, हम कोशिश करके पहुंच सकते हैं और पहुंच भी रहे हैं डेफिनेटली। तो ये Thank you, sir. So with this, we have addressed all the questions in the question answer box. So with your permission, may I sum up today's session? Singh Sir is there, so Yes, sir. Monica, you may ask if you want to. Sir, if you would want to speak a few words, sir. So you'll have to unmute yourself. Sir, unmute कर लीजिए सर, unmute है सर। I must compliment the inaugural session and both the sessions went off very well. My apologies that the inaugural session exceeded the time and I am the guilty person. My apologies for that. But I have nothing more to add as of today. But thank you. It went off very well. Thank you, sir. Thank you very much, sir. That was actually important, sir. Inaugural और वैलिडिटी में हमेशा थोड़ा टाइम लगता है, बट एक्चुअली आपके रहने से हम लोगों को ये भी तो पता चलता है कि विजन क्या आगे का लेना है, कैसे लेना है, गैप्स कहाँ पे हैं, क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या अपडेट करना है. So not at all, sir. This is our learning, and I hope that all the participants also have learned a lot new things by the speeches of our dignitaries, including yours, sir. Your kind presence throughout the program is a big morale booster for all of us, sir. Thank you very much, sir. Indeed, sir. Thank you. So with this, the first day of our training program comes to an end. The next 2 days and subsequent sessions cover very important subjects of concern, which will enhance our understanding. I would once again like to thank our speakers for day one and for equipping us on the subjects and sharing valuable views. I would like to remind the participants to join us tomorrow at the same time, that is 11 a.m. for the program. Meanwhile, if someone has not registered, you may kindly do so. And if there's any query, you can reach out to us at policyperspective@gmail.com. We'll get back to you in due course. The ID is mentioned in the chat box. We'll mention it again. Gentle reminder that the registration is necessary in order to obtain the certificate. So we look forward to connecting with you all tomorrow again at the same time. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Bye. Bye. Bye, sir.